insights, and experience of counseling sessions. Their accomplishment and contribution in their field are truly inspiring, and we are excited to learn from their experience. To our students, this is a fantastic opportunity to gain knowledge, ask questions, and broaden your perspective. I encourage you to actively engage with the guests and make the most of the experiences. Your presence here is a testament to your commitment to share knowledge and inspiring young minds. During your visit, we hope you will enjoy our school's hospitality and get a glimpse of our vibrant community. Once again, welcome to LC Public School. We wish you a wonderful time with us. Medicine can cure disease, but only doctors can cure patients. Dear students, honored guests, and medical professionals, it is our privilege to introduce a remarkable individual who personates excellence, compassion, and dedication in the field of medicine. Dr. Arpit Bansal, MBBS, MS, FMAS, FCS, is one of the most renowned and advanced laparoscopic and orthosurgeon and male infertility consultant. He is the leading specialist in male infertility in state of Uttar Pradesh. He is director of 500-bedded multi-speciality and super speciality in Jeevan Jyoti Group of Hospital, Allahabad. Besides top laparoscopic expert, he is a TEDx speaker, gut health advocate, IG health insurance, nature and bird photography enthusiast, and fitness buff. Dr. Bansal, born in Ranchi and raised in Allahabad. Dr. Bansal's journey began with a strong foundation laid by his birth parents. His father, Dr. A.K. Bansal, was his earliest role model, introducing him to the medical field at a young age. Dr. Bansal's brother also played a pivotal role in shaping his values and work ethics. Dr. Bansal's childhood was marked by resilience and determination. He spent the formative years at Mayo College, a boarding school, which instilled independence, extroversion, and a deep connection with nature. Dr. Bansal's academic excellence took him to prestigious institutions, including Mumbai for his MBBS, Nagpur for his master's degree, and Pune for advanced laparoscopic training. He also pursued cancer training in Ahmedabad and gained international exposure in the UK and US. Despite facing challenges, Dr. Bansal preserved crediting spirituality as his backbone. He acknowledges the influence of his mentors, Dr. Murtaza Akhtar and Dr. Sailesh Punatambekar, in shaping his expertise. As director of Jeevan Jyoti Hospital, Dr. Bansal continues his family's legacy, administering the hospital alongside his mother. He has been practicing for over a decade, specializing in advanced cancer surgery. Beyond his professional accomplishment, Dr. Bansal is a spiritual individual who believes in meditation, positivity, and living in presence. Dr. Bansal's philosophy emphasizes learning from mistakes, choosing wise company, and cultivating spiritual strength. During the COVID-19 pandemic, he selflessly provided free consultation, demonstrating his commitment to serving humanity. It is now our pleasure to invite Dr. Arpit Bansal to deliver his speech. Sir, please join us. हेलो इससे बोले हेलो ऑन करो बेटा. Hello children, thank you so much Pooja ma'am, principal ma'am and dear children, and thank you so much both of you for such a kind and confident introduction. I love both of you how confident you were.
So here I am today. This talk has been planned many times with Pooja ma'am, but finally I could come here, and I'm very happy to see the energy levels of the school in general, and the attention and the curiosity of you all. I can sense that this is going to be an interesting session with all of you. So what is the topic of the talk today? I'll be, while I share a very interesting and a new topic, which I am almost sure that none of you have ever heard of. The topic is called Blue Mind and how to live a healthy long life. Not just longevity. Longevity means long life, but healthy long life is the key. So along the talk, sharing insights about water, Blue Mind, I'll be telling my journey with it. And so water in general, we all are aware, is the most crucial element. And but we still don't give that much importance. So before going to the Blue Mind, I will first tell some points which are very important for your health in general related to water, and then we will progress to the Blue Mind, and then various different things about passion and how to live your life best way. So if there is magic in life, it is contained in water. Let's find out how. Water, we all know, is the main hub of life. It is an extraordinary substance. So there is no life without water, and life is like water dancing to the tune of solids. So we all are aware that water is the most important substance. Since there are so many things, almost 99% things about water which we are not aware of. Even in our planet Earth, there are 95% of the water bodies, deep oceans, which are not yet explored. So water is so vast, and my points about water and in general today will definitely connect with you, all of you, each one of you sitting here, because you are 60 to 70% water. So main conversation we are going to have will be around water, and you will naturally absorb it. As I said, 70% of you, each and every one of you sitting here is water. So it is natural that you will absorb. And I will like to start with this quote by Bruce Lee, that is, be water my friend. Just hear the talk by being water. Ever thought that whenever we are unhealthy, even our grandparents or parents keep telling us that keep drinking a lot of water whenever you are unhealthy or feeling not feeling well. So that is what the importance of water is. And then when we are born, whoever the creator, the God, the universe, whoever you want to say or whoever you believe in, जिसमें भी आप विश्वास करते हो, भगवान या किसी चीज़ में भी, तो ये आपको क्या लगता है कि ह्यूमन बॉडी में इतनी अच्छी वेल डिज़ाइंड बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भगवान ने इतने, या नेचर या जिसको भी आप कह लें उन्होंने बनाई है, तो ह्यूमन बॉडी में 70% यानी कि 70% इज़ वाटर, है ना? ये है कि नहीं है बेटे? पता है कि नहीं सबको इतना बात? और प्लैनेट अर्थ में भी अगर आप देखोगे तो 70% वाटर, रफली द सेम अमाउंट. सो डू यू थिंक इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस? एक ये इत्तेफाक है? ये डेफिनेटली इत्तेफाक नहीं है. जिसने भी प्रकृति बनाई, यूनिवर्स, गॉड या जो भी कह लीजिए आप, जिसमें भी आप विश्वास करते हैं, इतना बड़ा कनेक्शन उसने छोड़ के गया है. मतलब हमारे सामने लाइव है कि प्लैनेट अर्थ में भी 70% पानी है और ह्यूमन बॉडी में भी 70% पानी है. तो ये कनेक्शन को हम बहुत कम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं, इसमें सोचते हैं. आप भी सोचिएगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे इस जो मैंने बताया उसके अलावा भी और कुछ है तो मेरे को ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसमें कनेक्शंस तो बहुत डीप है. आप रिलीजन्स देख लीजिए, या जब इनिशियली लाइफ शुरू हुई अर्थ पे, या कोई भी इंडस वैली सिविलाइजेशन देख लीजिए, हिंदू रिलीजन देख लीजिए, मुस्लिम रिलीजन देख लीजिए, सबकी अगर आप ओरिजिन स्टोरी सुनेंगे, मतलब कैसे शुरू हुआ, तो वो सब रिवर के किनारे होता है, नदी के किनारे होता है, या पानी के किनारे होता है, क्योंकि पानी खाने के लिए और जीने के लिए, लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है. मतलब प्यार भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन देर आर थाउजेंड्स हु हैव लिव्ड विदाउट लव, बट नॉट इवन वन विदाउट वाटर. एंड इस कोट को आप ध्यान से सोचिएगा. मतलब प्यार कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, हमारे पेरेंट्स के प्रति प्यार, हमारे अपने प्रति, हमारे सेल्फ के प्रति प्यार, और हमारे लाइफ में प्यार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? सब जानते हैं, सबको मालूम है, सबको प्यार चाहिए, फ्रेंड से प्यार चाहिए, माता पिता से प्यार चाहिए, लेकिन देर आर थाउजेंड्स हु हैव लिव्ड विदाउट लव बट नॉट इवन वन विदाउट वाटर. सो ये जो कोइंसिडेंस है, या मतलब ये कोइंसिडेंस तो नहीं है, पर ये जो इत्तेफाक है कि 70% है, ये क्यों है? एवरी सिंगल वन ऑफ अस, देयर इज़ नो एक्सेप्शन टू दिस, आर एसेंशियली वाटर बेबीज़. मतलब कुछ लोग होंगे जिनको लगता है कि हमको पानी पसंद नहीं है या स्विमिंग पसंद नहीं है, वो हमारा
प्रेजेंट लाइफ में या कोई ट्रॉमा का इंसिडेंट होता है पुराना, जिसके वजह से हम ऐसा कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं, या कोई फियर, बचपन में कोई फियरफुल मेमोरी होती है, लेकिन वी ऑल आर एसेंशियली वाटर बेबीज, बिकॉज फर्स्ट 9 months ऑफ आवर लाइव्स, पहले 9 महीने वी आर लिविंग इन आवर मदर्स वूम, which is basically water. Amniotic fluid is 80% water. So, and we are breathing through gill slits like organ, जो कि underwater जो organisms है वो breathe करते हैं. And this is how I'll just go into the little bit scientific aspects of hydration before heading to the blue mind. So this is how a hydrated cell looks like and a dehydrated cells look like. This is how a fresh and young and hydrated leaf in nature looks like, and this is how a dry and old and dead leaf looks like. So right now we are, since I am a doctor, so I'll start about little bit health related topic, and so we all know that we are aging. Everybody is aging. Right now I'm 38 years old, and you all are must be 20-25 years, less than that, less than 20, 18 years maybe. So we all are aging every single day, and aging depends on what we eat, what we do to our daily lives. But if you get to the crux of it, we are in an era of technology where we are not sure at all to be scared of cancer or cancer related diseases, because cancer research has gone way ahead. There is lots of newer technologies, newer research which are claiming that, which are not just claiming, which are very potential cures for cancer, except in the last stage of cancer or stage 4 of cancer, which is still very difficult to treat. But apart from that, all other stages of cancer are very, very curable. So we are in a stage of research now, which cancer research was there 50 years back. 50 years back कैंसर का नाम सुन के लोग एकदम डर जाते थे, है ना, कि कैंसर हो गया मतलब अब कुछ नहीं हो सकता. बट कैंसर रिसर्च बहुत आगे बढ़ चुकी है. अब जो रिसर्च चल रही है वो चल रही है एजिंग पे. जब इंसान पैदा होता है, जब पहले आए, तो हमारा मेन गोल लाइफ में क्या है? खुश रहना है, हेल्दी रहना है और लंबा जीना है. कोई भी जल्दी मरना नहीं चाहता. एनीबडी वांट्स टू डाई अर्ली हियर? नो, right? Everybody wants to live long, but living long is not the key. Living healthy is the key, है ना. मतलब मेरा प्लान, और मैं तो जब सबको यही बोलता हूँ कि जब तक हेल्दी लेने का क्या मतलब है कि आपके लाइफ के लास्ट 10 years में क्या करना चाहते हैं, वो आपको अभी से डिसाइड करना है. जो भी आपको पसंद है अभी, मतलब अभी तो आप लोग कॉलेज में हो, स्कूल में हो. when you get into your life and you start doing things you like, then you have to make sure to make a list that what you want to do in the last 10 years of your life. You have to keep your body, your mind, your overall health that much that you can do all these things in the last 10 years of your life. For example, I am a surgeon, I am a laparoscopic surgeon, I am a passionate scuba diver, so I love to dive in the ocean and connect to the underneath ocean life below it, the fishes, the corals. Then I am a bird photographer, bird watcher, so I would like to do bird watching during the last 10 years of my life. I like to connect with nature. I am a fitness enthusiast, so I want to keep running in the last 10 years of my life. So if you try and live life with that purpose, then you will automatically be healthy and consume good food, nutrition and overall health. So we age. So right now we are coming back to the topic. We are aging every day, and now big people like David Sinclair quotes in his book that aging is a disease. Aging is a disease which can be reversed, which can be stopped. So aging is also a disease, and we age. If you go to the science of it, why we are aging, a newborn is born is with 78% water. A newborn, when he is born, 78% उसके शरीर में पानी होता है. और जब वो 60 years का हो जाता है, any person turning 60, tentatively the body percentage is 60%. So it is very evident that we are aging because we are chronically dehydrating. Now here we come to what is cellular hydration. So for example, आपको पता है कि हमारे बॉडी में बहुत ढेर सारे प्रोसेसेस होते हैं. जैसे अभी आप लोग लिसनिंग कर रहे हैं, अभी आप उसके बाद आप डाइजेशन होता है, थिंकिंग होती है ना, हार्ट बीट हो रही है. तो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स आर वर्किंग इन आवर बॉडी. ठीक है, इसी तरह से हमारे बॉडी में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं. हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम होता है जो कि कॉन्स्टेंटली वायरस बैक्टीरिया है आसपास हमारे, जो कि हमारे बॉडी में घुसता है, लेकिन वी आर फाइटिंग, द बॉडी इज फाइटिंग. समझ आ रहा है सबको? तो बॉडी इज फाइटिंग. सो इसलिए हम इमेजिन करते हैं कि हमारे जितने सेल है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में कितने सेल होते हैं? किसी को पता है कितने सेल होते हैं? हमारी बॉडी में एज एन एवरेज अडल्ट 37 ट्रिलियन सेल्स होते हैं.
ट्रिलियन सेल्स, 37 ट्रिलियन सेल्स। सो इमेजिन आपको ये कर रहा है कि जितने सेल है हमारे बॉडी में, कुछ हार्ट के सेल है, कुछ ब्रेन के सेल है, कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम के सेल है, ये जो है ये एक बैटरी है, सारे सेल एक बैटरी है मान के चलिए। इमेजिन, एक एनोलॉजी दे रहा हूँ मैं आपको, वो बैटरी है और वो बैटरी हमारा बेस्ट परफॉर्म करेगा जब हमारे अंदर 100% वाटर होगा हर सेल में। जो मैंने अभी शुरू में फोटो दिखाई थी एक सेल की, तो अगर ये क्या हो गया बेटा, हाँ, इट विल परफॉर्म बेस्ट व्हेन 100% ऑफ वाटर इन देयर इन आवर सेल्स। एंड जितना प्रोसेस अगर आप सेलुलर लेवल पे देखोगे, तो आप थिंकिंग कर रहे हो या जो भी प्रोसेस कर रहे हो, सेल लेवल पे पानी या तो हमारे सेल के अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, ये हमारा सेलुलर प्रोसेस है। तो इसलिए ये अगर हमारा बॉडी का सेल का परसेंटेज 100% रहेंगे, जो कि हम करेक्ट पानी पीने से, खाना खाने से मेंटेन कर सकते हैं, तो हम ओवरऑल हेल्दी रहेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितना पानी पीना चाहिए। दिस इज द कॉमन क्वेश्चन, राइट? कितना पानी पीना चाहिए, आप बताइए। हाँ, माइक्स है क्या मैम सबके पास? स्टिक की जरूरत नहीं है, स्टिक की कोई जरूरत नहीं, मैं उससे कम ही रिलेटेड बोला। सो बताओ बच्चों, कितना, हाउ मच वाटर शुड वी ड्रिंक, या व्हेन डू वी ड्रिंक वाटर, हम पानी कब पीते हैं? चलो चलो छोड़ो, मैं आगे बढ़ता हूँ, है ना। तो पानी हम वी ऑल नो कि पानी पीना ज़रूरी है ना। 7 to 8 लीटर्स, वेरी गुड आंसर बेटा। सो नाउ कमिंग टू द साइंटिफिक बिहाइंड कि कितना पानी पीना चाहिए। पहली चीज़, 7 to 8 लीटर या 7 to 10 ग्लास या कोई भी एक, हम हर बॉडी अलग है और हम किसी को एक पिन पॉइंट नहीं बता सकते कि कितना पानी पीना चाहिए। नॉर्मली मैं बता रहा था कि व्यूअर पानी को इतना इंपॉर्टेंस देना चाहिए। हम 2 समय पानी को इंपॉर्टेंस देते हैं लाइफ में, जो हम रोज़ करते हैं, पानी पीते हैं और पानी से नहाते हैं। वी ऑल बेथ विद वाटर, वी ड्रिंक वाटर। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम अनकॉन्शियसली पीते हैं, हम सबकॉन्शियसली पीते हैं। स्कूल आना होता है, फटाफट जल्दी से नहा लेते हैं और पानी तो पता नहीं पीते हैं या नहीं पीते, या पीते भी है तो ध्यान नहीं देते। पहली चीज़ तो पानी हम कब पीते हैं? जब हमको प्यास लगती है, करेक्ट। सब लोग पानी तब पीते हैं जब प्यास लगती है। लेकिन अगर साइंटिफिक जाओगे तो हमको प्यास कब लगती है बॉडी में, यानी कि हमारी ब्लड में। आवर ब्लड हैज़ 80% वाटर, या और लेकिन प्यास कब लगती है? जब वो 80% पानी 70% हो जाता है, कम हो जाता है बॉडी ब्लड में, और जो ब्लड में सॉल्ट होता है, सोडियम, वो उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। वो जाके ब्रेन में हाइपोथैलेमस को सिम्टम देता है कि ब्लड में पानी कम हो रहा है। तो वो एक हार्मोन रिलीज करता है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, जो कि किडनी को बोलता है कि बॉस पानी की कमी हो रही है, पानी बचाना है। एंड फिर उस सारे सिस्टम से हमको प्यास लगती है। तो इफ़ यू थिंक एट सेलुलर लेवल, जब तक हमको प्यास लगती है तब तक पानी बहुत कम हो चुका होता है एट सेलुलर लेवल। आर सिस्टम्स, आर इम्यून सिस्टम, आर डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म, आर कॉग्निटिव यानी कि हमारा ब्रेन फंक्शन, डाइजेशन, सब 100% काम नहीं कर रहा है, क्योंकि हमारा सेलुलर डिहाइड्रेशन हो चुका है, सेल्स के अंदर ऑलरेडी डिहाइड्रेशन हो चुका है। तो पानी, नया कंसेप्ट ये है कि, और आयुर्वेदा भी ये चीज़ सपोर्ट करता है कि पानी कब पीना चाहिए? जब हमको इतना पानी पीना चाहिए, चाहे 7 to 8 लीटर हो, जैसे एक बच्चे ने कहा, चाहे 5 to 6 लीटर हो, चाहे 10 to 12 लीटर्स हो, हमको पानी लगातार दिन भर में पीते रहना चाहिए बिना प्यास लगे। तो आइडियली हमको कभी प्यास लगने का सेंसेशन हम भूल जाना चाहिए। वी शुड नेवर फील थर्स्टी। द आइडियल गोल ऑफ ड्रिंकिंग राइट अमाउंट ऑफ वाटर इज नेवर फील थर्स्टी इन लाइफ। अब वो अगर मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, अगर मैं रोज़ सुबह 10 किलोमीटर भाग रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मेरे को ज़्यादा प्यास लगेगी। अगर हम गर्म एरिया में रह रहे हैं तो ज़्यादा प्यास लगेगी, अगर ठंडी का मौसम है तो कम प्यास लगेगी। तो वो हर बॉडी का चेंज होता है। अगर हम एज ज़्यादा है तो कम प्यास लगेगी। अगर हमारे को कोई बीमारियां हैं, आपकी मम्मी पापा को कोई दवा खाते हैं, तो उस हिसाब से चेंज हो सकता है। तो और सेकंड थिंग, नंबर 1 थिंग, कितना पानी पीना चाहिए? नंबर 1 थिंग कि हमको पानी उतना पीना चाहिए कि प्यास कभी ना लगे। अपनी बॉटल लेके चलिए और अपनी बॉटल पीते रहना है, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, हमारी ह्यूमन बॉडी ने इतना हाइड्रेशन गेज सिस्टम दिया है, हमारा यूरिन का कलर देखना होना चाहिए, की आदत होनी चाहिए। और वो हमारा खुद का हाइड्रेशन सिस्टम है, हमारा बॉडी का सिस्टम है, जिससे पता चलता है कि हम हाइड्रेटेड प्रॉपरली है कि नहीं है। यूरिन का कलर हमारा वाइटिश या पानी जैसा या बहुत ही फेंट येलो होना चाहिए। ये 2 चीज़ें हैं जो हमको ध्यान देना है। अब यहाँ बहुत ढेर सारे गर्ल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए मैं स्पेसिफिकली एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि हम लोग नॉर्मली ड्यू टू नॉट अवेलेबिलिटी ऑफ गुड वॉशरूम्स, अच्छे वॉशरूम नहीं होते, तो लड़के और लड़कियाँ दोनों
और स्कूल में पढ़ाई भी करनी होती है, तो सबसे पहले चीज़ क्या होती है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो पानी कम पियो। करते हैं कि नहीं? ऐसा करते हैं बहुत सारे लोग, करते हैं कि नहीं करते? सच्ची बताओ, करते हैं ना? तो वो बहुत ख़राब कर रहे हो अपनी बॉडी के साथ आप। तो पानी लेना है और अपनी बॉटल अपने साथ हर हालत में रखनी है, एवरी सिंगल डे रखनी है। और ये बॉटल मेरे साथ ओटी के अंदर भी जाती है, मैं कोई 200 किलोमीटर दूर या कोई पहाड़ पे चढ़ता हूँ तो भी मेरे साथ जाती है, मैं कहीं पानी के अंदर बोट से ओशन के अंदर जाता हूँ तो वहाँ पे भी मेरे साथ ये बॉटल जाती है। तो वो पानी आप, और जैसे मैंने बताया आजकल अनहाइजीनिक वॉशरूम्स के ऑल्टरनेटिव में मतलब सैनिटाइजिंग स्प्रेज हैं, पी बडीज़ हैं स्पेशली लड़कियों के लिए, और लड़कों के लिए कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव निकल जाता है, बट पानी हमको तो भी पीना है, ये नहीं सोचना है। तो आज से ट्राई करना है कि पानी हमको पीना है बिना सोचे कि वॉशरूम जाना पड़ेगा, 5 मिनट 2 मिनट का क्लास मिस हो जाएगा या अच्छा वॉशरूम नहीं है, ये सब नहीं सोचना है, बिकॉज यू आर हार्मिंग योर हेल्थ इन मैटर्स विच यू कैन नॉट अंडरस्टैंड राइट नाउ। So you have to keep on drinking water. And now मतलब dehydration is linked to everything. Dehydration साइंस में हमने पढ़ा, साइंस में मैंने कई बुक्स में पढ़ा कि सेलुलर डिहाइड्रेशन, जो मैं बार बार बोल रहा हूँ उस सेलुलर डिहाइड्रेशन जो बहुत सारे समय से हम लोग को है, मेरे को भी हो सकता है, बहुत लोगों को है, कि पानी में जितना हमको 100% चाहिए पानी उतना हम नहीं पी रहे हैं। तो वो सेलुलर डिहाइड्रेशन इज द कॉज ऑफ कैंसर, कॉज ऑफ हाइपरटेंशन, इट इज़ द साइंटिफिक कॉज ऑफ इट। सो अगर आप मतलब सिंपल सोल्यूशन है, अगर आप पानी के बारे में अवेयर हो जाए और पानी इतना पीते रहे तो हमारे हर बॉडी में ऑन्कोजीन्स होते हैं या रिपेयर मैकेनिज्म होते हैं। कैंसर क्यों होता है? कैंसर क्यों होता है? क्योंकि हम एनवायरमेंटल टॉक्सिन्स है, स्मोक है या अलग अलग टॉक्सिन्स है जो कि हमको हमारे डीएनए को हर्ट करते हैं और डीएनए को डिस्ट्रॉय करते हैं, और उससे फिर कुछ सेल है जो आउट ऑफ कंट्रोल ग्रो होने लगते हैं जो कि कैंसर है। तो उसको ठीक करने का मैकेनिज्म everybody has this mechanism of repairing our, so that we don't get cancer, but provided we let it function at 100% capacity. So अगर आप पानी अच्छे से पियोगे, और हाइड्रेशन का मतलब सिर्फ पानी पीना नहीं होता है, अच्छा खाना खाना होता है, और वो लार्जली अ प्लांट बेस्ड डाइट भी होता है। तो नाउ कमिंग टू व्हाट इज लॉन्जिविटी। लॉन्जिविटी हमने शुरू में बताया था कि लॉन्जिविटी मीन्स टू लिव लॉन्ग एंड हेल्दी। सो इसमें दो टर्म्स होते हैं। व्हाट इज योर लाइफ स्पैन? सो इन एन एवरेज एडल्ट अभी इंडिया में 60, 70, 80 वॉज द लाइफ स्पैन, बट अब टेक्नोलॉजी इज इंक्रीजिंग, इम्प्रूविंग, एंड नाउ द हेल्थ लाइफ स्पैन इज इम्प्रूविंग टू अप टू 70 years, 80 years, even 100 years. Many people are planning to live 100 years. So but as I told in the beginning also, health span is more important. Health span मतलब healthy रहना है, 10 years लास्ट के क्या करना है वो आपको सोचना है। So now मैंने आपके स्कूल में जैसे ही घुसा तो मेरे को बहुत अच्छा पोस्टर दिखा, और पोस्टर में मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, वेलबींग सब के बारे में लिखा था। तो आई होप जो आपके घुसते ही फर्स्ट पोस्टर है वो सब लोग ने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो फिर जाके पढ़ना है ना, क्योंकि पिलर्स ऑफ हेल्थ पे मैं 2 मिनट के लिए बोलूँगा, और मेरी शेड्यूल, मेरा रूटीन थोड़ा थोड़ा मैं आइडिया दूंगा। पिलर्स ऑफ हेल्थ मतलब क्या होता है कि हेल्दी रहने के लिए, लॉन्ग रहने के लिए क्या करना है। सबसे पहला चीज़ तो ऑब्वियसली है न्यूट्रिशन, हम क्या खाना खा रहे हैं। ये इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, एवरीबडी नोज जंक फूड खराब है, लोकल हेल्थ ऑर्गेनिक या नेचर का फूड हेल्दी होता है। एंड न्यूट्रिशन में हाइड्रेशन यानी कि पानी का कंटेंट ऑलरेडी उसी में एक ही पिलर में है, हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन। हाइड्रेशन के बारे में मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड अ लॉट। नंबर 2 इज एक्सरसाइज। यहाँ पे तो अभी बच्चे हैं 18-20 ईयर्स के नीचे हैं सब तक ज़्यादातर, तो बच्चों को एक्सरसाइज बॉडी में इतना पता नहीं चलता है, बिकॉज हम वी आर कीप ऑन ऑलरेडी रनिंग हियर एंड देयर, कुछ ना कुछ वी कीप ऑन डूइंग मस्ती। व्हेन यू क्रॉस अडल्टहुड, जब व्हेन यू गेट इनटू सीरियस इनटू लाइफ, देन काम, पैसा कमाना, घर, फैमिली के प्रेशर इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मेनी पीपल टेंड टू इग्नोर दिस। तो यहाँ पे मैं एक कहानी बताऊँगा। व्हेन वी वर बॉर्न, व्हेन हम धरती पे आए थे, जब ह्यूमंस आए थे, तो वी वर हंटर गैदरर्स, है ना। हम रोज़ जंगल में सोते थे सब लोग ग्रुप्स में, और हम लोग रोज़ सोते थे, सूर्यास्त यानी कि सनराइज़ के साथ उठते थे। उठने के बाद हमारा सबसे पहले गोल क्या होता था कि खाना ढूंढना है। खाने ढूंढने के लिए हंटिंग करनी है, तो उसके लिए हम कई किलोमीटर्स चलते थे, जो भी हमको खाने का सोर्स है वो ढूंढते थे। तो मूवमेंट वॉज अ नेचुरल पार्ट ऑफ इट, नेचुरल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ऑफ ह्यूमंस इन जनरल। बट अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, हमने इतना ज़्यादा ख़राब कर लिया अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ, जिसमें हमने जोमेटो और स्विगी को इतना इंपॉर्टेंस दे दिया है कि हम जोमेटो स्विगी हमारे घर के डोर स्टेप तक खाना देता है,
बस थोड़े ही और दिन की बात है, फिर वो हमारे बेड स्टेप तक भी देगा, हमको बेड में भी आके दे देगा जोमेटो स्विगी खाने। तो दिस इज ग्रॉस एंड वेरी बैड विच वी आर डूइंग, है ना। मूवमेंट, खाना खाने के लिए हमको मूवमेंट करना हमारा नेचुरल इंस्टिंक्ट था। नेचुरल इंस्टिंक्ट हुआ करता था हमारा खाना खाने के लिए मूवमेंट करना, वो अब नहीं है। तो इसलिए इन्वेंट हुई एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज वॉज इन्वेंटेड बाय ह्यूमंस बिकॉज ऑफ आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज हमने इतनी लाइफ को इतना कंफर्टेबल बना दिया था, इसलिए एक्सरसाइज इन्वेंट की। पर नॉनदलेस एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज के बिना आप हेल्दी नहीं रह सकते। एक्सरसाइज अलग अलग तरह के होती है। तो आई एम अ रनर ऑल्सो, आई रन ऑलमोस्ट एवरी डे 5 kilometers minimum, and so running is a beautiful exercise, it's like a meditation also. So now as you can read here, अब मेरे बारे में कि मैंने ये भी किया है वो भी किया है। So मेरी लाइफ में अभी 2 साल पहले तक मैं बहुत कुछ करता था, कर रहा हूँ अभी भी। मैं I was laparoscopic, I am a laparoscopic surgeon, so I am performing surgeries, I am running such a big hospital, I am running after birds also, I am the top 10 bird watchers of India. So I have seen more than 1145 birds of India out of 1300. So ये सब करने के लिए I used to keep running here and there obviously, and bird watching करता था, nature talks देता था। मैं nature से बहुत attached हूँ। तो अभी ब्लू माइंड का जो आएगा वो उसमें भी वही सारी चीज़ें हैं। So लेकिन ये आपको, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ और मैंने I read it in books is, तो मेरा इसमें सबसे ज़्यादा I used to ignore sleep, which is the third and the most one of the important pillars of health. स्लीप इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज स्लीप में हम वो हमारे ब्रेन्स के एक्सेस करते हैं एरियाज जो कि हमारे ब्रेन को रिबूट करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को रिबूट करता है। सो थर्ड पिलर ऑफ सक्सेस जो कि कोई भी कहीं बताता नहीं है, इज स्लीप, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4 इज NSDR। NSDR एक बहुत न्यू टर्म है, आप लोग को शायद समझ भी ना आए। इसका फुल फॉर्म है नॉन स्लीप डीप रेस्ट। नॉन स्लीप डीप रेस्ट इज द सेम टर्म जो हम आगे अभी पूरा डिस्कस करेंगे, विच इज़ ब्लू माइंड या मेडिटेशन। हर फॉर्म ऑफ मेडिटेशन इज NSDR और नॉन स्लीप डीप रेस्ट। नॉन स्लीप डीप रेस्ट मतलब आप सो नहीं रहे हो लेकिन आप बहुत डीपली अपने माइंड को रेस्ट दे रहे हो, कनेक्ट कर रहे हो। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ। ये सब हमने काफ़ी चीज़ें बता दी ऑलरेडी। नाउ वी आर कमिंग टू द इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कॉल्ड द ब्लू माइंड। व्हाट इज द ब्लू माइंड? सो ब्लू माइंड इज अ book written by Wallace Nicholas, who is a marine biologist and also a neuroscientist. And he began his journey by meeting many people all across the world, neuroscientists, cognitive psychotherapists, and he coined this term blue mind. What is blue mind? Blue mind is a mildly meditative state, which is a state of calmness, peacefulness, relaxedness, happiness और sense of well-being in the given moment. बहुत अच्छा लगता है इस स्टेट में आने के बाद। सब ने ये स्टेट का कभी ना कभी अचीव की है और इन्जॉय किया है। सो ब्लू माइंड अगेन इज अ माइल्डली मेडिटेटिव स्टेट कंप्राइजिंग ऑफ कामनेस, पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, वेल बीइंग इन द गिवन मोमेंट, एंड दिस ह्यूमंस रिफ्लेक्सली अचीव। ह्यूमंस अपने आप इस स्टेट में पहुंच जाते हैं व्हेन वी आर नियर वाटर, इन वाटर, अंडर वाटर और ओवर वाटर। तो ये एक उन्होंने टर्म सिर्फ कॉइन किया, ये स्टेट और ये रिसर्च तो पहले से ही चल रही थी ऑलरेडी। सो ब्लू माइंड is a book in depth scientific book with a lot of scientific experiments, lot of scientific concepts, which teaches us that how water can make you happier and more connected and better at everything you do, whether it is surgery, whether it is studies. So this is what is blue mind is. And blue mind एक psychology of blue color है। मतलब we all know understand कि blue color brings calmness, right? अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही तो इमेजिन अ पूल, इमेजिन अ स्विमिंग पूल विद अ रेड फ्लोर लाइक दिस, देन ऑटोमेटिकली यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट ब्लू कलर मीन्स। यू कैनॉट इमेजिन अ पूल विद अ रेड कलर, राइट? वाई? बिकॉज ब्लू इज द कलर ऑफ कामनेस, रेड इज द कलर ऑफ स्ट्रेस और अलर्टनेस और एंगर और ऑल दोज थिंग्स. So that is what is psychology of blue means, and it is very natural in our systems. As shuru se I was telling so many things about water. So it is a very natural instinct because each and every cell of our body is water. So we have to be very curious and very connected about it. So now in थोड़ा थोड़ा सबको कुछ तो आइडिया लग रहा है कि what is the blue mind, ठीक है?
Now we have to understand some key concepts where I'll be explaining in little detail about what is the red mind. Since we all have the blue mind, we also have the red mind. What is the red mind now? So think of it, red mind is the stress mind or the cortisol mind or the sympathetic system or the active alert system. So for example, यहाँ पे अभी बॉम्ब फट गया या कुछ भी ऐसे कोई दुर्घटना हो गई या ऐसी कुछ अलार्मिंग सिचुएशन हो गई, तो हम लोग वी विल डू वॉट एवर वी वांट टू डू टू सेव आवर सेल्स एंड विल, मतलब हम अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे. आप रात को गहरी नींद में भी सो रहे होगे और तो भी अगर बॉम्ब फट गया या कुछ ऐसा कुछ हो गया तो आप सडनली उठ जाओगे. उस समय ऐसा नहीं उठोगे कि नींद आ रही है चलो सो जाते हैं, ऐसा नहीं, कोई भी नहीं करेगा. नोबडी विल डू लाइक दैट. सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, है ना? अगर ऐसा कुछ होता है तो वो हमारा रेड माइंड है, वो हमारा एड्रेनलिन है, स्ट्रेस सिस्टम है. अगर आप जंगल में और आपको एक टाइगर दिख गया तो आप उसके सामने ब्लू माइंड प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप रिलैक्स काम नहीं रह सकते. यू विल हैव टू run or be clever and do whatever you want to do to save yourself. So that is the red mind. Red mind is very very essential. Red mind के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते, क्योंकि as I told, red mind के बिना आप relaxed state में हमेशा नहीं रह सकते. We have to do, आप गाड़ी चल रहे हो, सामने कोई सडनली अगर आपको गाड़ी बैल आ गई या काव आ गई तो you cannot be, that is the red mind which saves from going into an accident. So red mind is very essential. बट अभी हमारी आजकल की लाइफ में, अभी तो आप बच्चे हैं लेकिन बच्चों में भी काफ़ी स्ट्रेस आ गया है, हर चीज़ में स्ट्रेस है. वही सेम पोस्टर को मैं रेफर कर रहा हूँ जो आपके स्कूल के एंट्रेंस में लगा हुआ है ना. तो माइंड में स्ट्रेस आ गया है. ऑल द स्ट्रेस इज रेड माइंड, है ना. व्हेन वी गेट अप इन द मॉर्निंग, सुबह स्ट्रेस है कि स्कूल जाना है, लेट हो गए, टाइम से उठे नहीं, ब्रेकफास्ट नहीं कर पाए, नहाए नहीं, तमाम चीज़ों का स्ट्रेस होता है. अडल्ट हमारे जैसे लोगों को कॉलेज जाना है, स्कूल हॉस्पिटल जाना है, सर्जरी करनी है, पैसे के इश्यूज हो सकते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हो सकते हैं, कोई घर में फैमिली इश्यूज हो सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी इश्यूज कि हम उठने से लेकर रात को सोचने से पहले तक वी आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि अब ये करें और कॉन्स्टेंटली इन द स्टेट ऑफ रेड माइंड. तो रेड माइंड इज गुड फॉर अस बट नॉट ऑब्वियसली कॉन्स्टेंटली. So that is why this state of era of life we need the blue mind activation or blue mind connection the most. तो ये हमारे आयुर्वेदा, हमारे पूर्वज, हमारे दादी नानी मेडिटेशन के रूप में जानती थी, है ना. एंड ब्लू माइंड इज़ अ कंसेप्ट कि आप पानी के किनारे ये मेडिटेटिव स्टेट, ये मेडिटेटिव फीलिंग, ये कामनेस, ये रिलैक्सेशन यू कैन अचीव जल्दी, यू कैन अचीव ईजिली. बट इवन इफ आई मेडिटेट हियर वेयर देयर इज नो वाटर, वाटर इज देयर इनसाइड ईच एंड एवरी सेल ऑफ अस, राइट. So that is what the blue mind makes you do. And when we are relaxed, we are calm. So that is what the difference between the red and the blue mind is. Now what is the default brain network? So there is something called as the default brain network. थोड़ा सा ज़्यादा साइंटिफिक है लेकिन समझना ज़रूरी है. तो जैसे हम अपनी फैमिली के साथ हम बीच पे जाते हैं, है ना, बीच पे जाते हैं, किसी को पानी में स्विमिंग करना पसंद है, किसी को स्विमिंग पानी के किनारे बैठ के सिर्फ पानी को देखने में मज़ा आता है, किसी को आंख बंद करके सिर्फ पानी की आवाज़ सुनने में मज़ा आता है. सही है कि नहीं है, है ना. किसी को पानी की फ़ोटोज़ खींचने में मज़ा आता है. somebody wants to swim, somebody like me wants to go inside the water, diving under water. So ये हमारा ऑटोमेटिक स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन हो जाता है, करेक्ट. हम whenever we are near water, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ मैं, आप एकदम ध्यान से सुनना. तो करेक्ट है ना. सपोज 4 लोग गए हम लोग फैमिली के किनारे, वी आर रिलैक्सिंग नियर वाटर. So we think that we are relaxed, our brain is at rest. But science finds out that when we think that when we are next to water, we are relaxing, we are enjoying, and we assume that our brains is at rest. Then at that time, science finds out that brain consumes the maximum amount of glucose. The brain also consumes the maximum amount of oxygen. How does that happen? ये तो काफ़ी अजीब लग रही है ये बात, लेकिन ऐसा होता है. क्यों होता है? क्योंकि ब्रेन में एक हिप्पोकैम्पस एक हमारा एरिया है, ब्रेन का बहुत छोटा सा एरिया है, एक मटर के दाने जितना बड़ा एरिया, हिप्पोकैम्पस, विच इज़ द मेन एरिया, मेन लर्निंग सेंटर, मेन मेमोरी सेंटर, विच कंसोलिडेट्स एवरीथिंग मेक्स इनटू अ लर्निंग एक्सपीरियंस. आपने एक दिन बहुत पढ़ाई की और घर जाके अगर आप सोए नहीं, या डिफ़ॉल्ट ब्रेन नेटवर्क से कैसे कनेक्ट करते हैं, जो डे ड्रीम करते हैं. बहुत सारे, मैम आप लोग को पता होगा, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में जो ड्रीम करने लगते हैं, इधर उधर बाहर देखने लगते हैं. तो एज टीचर्स हम जाके उनको पीछे से टपड़ी लगाते हैं और बोलते हैं कि पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, बोलते हैं मैम. दैट इज़ व्हेन दे आर डे ड्रीमिंग, दैट इज़ व्हेन दे आर इन देयर डिफ़ॉल्ट ब्रेन नेटवर्क.
एंड डिफॉल्ट ब्रेन नेटवर्क यानी कि डे ड्रीमिंग, यानी कि जो ब्लू माइंड पानी के किनारे या मेडिटेशन, सब फेजेस में जो ब्रेन का वेव्स होती है वो स्लो हो जाती है और उस समय वो डिफॉल्ट, ये हमारा हिप्पोकैम्पस इज मोस्ट एक्टिव. सो आइडियली एवरी वन ऑफ अस should daydream or should connect to their default brain network on every single day. रोज हमको वो फेज ऑफ माइंड से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम नहीं कनेक्ट करते हैं तो जो भी आपने सीखा एक दिन में, सपोज आपने ये टॉक सुना या कुछ भी किया और आपने अगर डे ड्रीम नहीं किया या डिफॉल्ट ब्रेन नेटवर्क में, चाहे मेडिटेशन से, चाहे ऐसे ही सिर्फ खाली बैठ के सिर्फ नेचर को देख के सोचने से भी आप डे ड्रीम स्टेट में जा सकते हो. अगर वो आपने नहीं किया तो वो कंसोलिडेशन, आपकी मेमोरीज नहीं बन पाएंगी जो भी आपने सीखा 24 से 48 घंटे में. व्हेन यू गो इनटू दैट फेज, डिफॉल्ट ब्रेन नेटवर्क इज द माइंड का थॉट प्रोसेस जो कि इट कनेक्ट्स अस टू नेचर, इट कनेक्ट्स अस टू द यूनिवर्स या भगवान या जो भी आप कह लीजिए. तो अगर हमने वो नहीं किया तो हमारा लर्निंग नहीं होगी, हमारी कोर मेमोरी में नहीं जाएगा. जो भी हमने सीखा सुना वो हमारा सुपरफिशियल मेमोरी में रह जाएगा और एक हफ्ते 10 दिन बाद वी विल फॉरगेट एवरीथिंग. But if you do that, if you connect to your default brain network through meditation, sleep में भी ये automatically थोड़ा थोड़ा होता है, sleep में भी, but अगर हमने वो किया तो it will go into our core memory and then we will remember this all our lives. And also in this book there are some many studies which say like hydration, and which has scientific studies on hydration and performance. Like there were 30 groups of students who were given exam. Like आप लोग हो इधर, मैं 30 लोगों को कॉन्शियसली बोलूँगा कि पानी पीना है, अच्छे से पानी पीना है, और इधर कुछ नहीं करेंगे. तो all of those 30 performance in academic performance, in sports performance were better than people who were not consciously hydrated. So these are the kind of studies. For example, एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी ये भी है कि आफ्टर कार्डियक सर्जरी, आपके एक कई ग्रुप ऑफ पेशेंट को कार्डियक हार्ट की सर्जरी हुई, एंड हार्ट की सर्जरी के बाद जो बेड, हॉस्पिटल में बेड होता है, उसके फुट पैनल पे ब्लैंक पैनल था, मतलब वाइट रंग का पैनल था. कुछ पेशेंट्स के पैनल में ओशन की सीनरी थी, बहुत ब्यूटीफुल ओशन की, और कुछ लोगों की एनक्लोज्ड फॉरेस्ट, मतलब ग्रीनरी की सीनरी थी. तो जो भी पेशेंट्स जिसमें दोनों अच्छी सीनरी थी, चाहे ग्रीन वाली चाहे ओशन वाली, दे रिक्वायर्ड 50% लेस पेन मेडिसिन. सिर्फ उनके पैनल पे एक फोटो रखने से दे रिक्वायर्ड 50% लेस पेन मेडिसिन. एंड अमंग्स द टू, जिनके सामने ओशन वाली सीनरी थी, दे रिक्वायर्ड इवन 50% लेस एंग्जाइटी मेडिसिन. तो दिस इज व्हाट द रोल ऑफ ब्यूटी ऑफ वाटर इज इन आवर लाइफ्स. एंड बाकी तो मैं सारी चीज़ें बता ही चुका हूँ. साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स होते हैं, स्ट्रेस रिडक्शन, एनहांस क्रिएटिविटी, इम्प्रूव्स फोकस. सो ये तो सबको पता है कि अगर गुस्सा आ रहा है तो एक ग्लास पानी पी लो, है ना. ये जो सब लोग कहते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं कहते, एकदम सही कहते हैं. अगर गुस्सा आ रहा है तो जाके नहा लो. अगर गुस्सा आ रहा है और आपके आसपास से कोई फाउंटेन है या वाटर बॉडी है, तो सिर्फ 2 मिनट फाउंटेन को देख लो, यू विल ऑटोमेटिकली काम डाउन. अगर गुस्सा खत्म नहीं होगा तो ठंडा तो हो जाएगा, कम तो डेफिनेटली हो जाएगा. दिस इज व्हाट द पावर ऑफ वाटर इज. एंड फिजिकल बेनिफिट्स ऑब्वियसली वी हैव ऑलरेडी done into everything. Now here is one very interesting story, an experiment which is not very directly related, but water का calmness और water हमारी will power, water हमारे overall health को कितना अच्छे बनाता है उसमें है. There was this famous experiment called as Stanford Marshmallow Experiment. आपने सुना है किसी ने? मैम आपने सुना है? This is a very very famous live experiment which is there. So 7 to 8 years के बच्चों को स्कूल में जाके एक साइंटिस्ट, ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने एक 30 चिल्ड्रन के स्कूल में गए और उनको मार्शमेलो दिया. मार्शमेलो मतलब टॉफ़ी, चॉकलेट वाला मार्शमेलो. एंड सब एक मार्शमेलो सबको दिया बच्चों को, एंड उनको बोला कि आइदर यू कैन ईट द मार्शमेलो नाउ और वेट फॉर 30 minutes, एंड इफ यू वेट एंड डोंट ईट इट यू विल गेट 1 more marshmallow. So either you can eat 1 marshmallow now or you can get 2 marshmallows at the end of 30 minutes. So सब टीचर चली गई ये बोल के, किसी को मतलब सब, तो किसी बच्चों के सामने एक मार्शमेलो सबके सामने रखा था. आइदर दे कैन ईट 1 marshmallow नाउ और दे कैन गेट 2 marshmallows आफ्टर 30 minutes. सो हियर मैनी चिल्ड्रन देन स्टार्टेड टू डिस्ट्रैक्ट, सम कुछ पेंटिंग करने लग गए, कुछ बुक्स में स्क्रिबल करने लग गए, कुछ रीडिंग करने लग गए. बट वेरी फ्यू पीपल इन द एंड कुड वेट दोज 30 minutes and got the second marshmallow. Now these 30 children, this is a real experiment which happened, and this is the experiment is I think 40 years old. So for the next 40 years, all these 30 students were studied.
दैट व्हाट दे अचीव्ड इन लाइफ, उन्होंने स्कूल के परफॉर्मेंस को स्टडी किया, आगे लाइफ में क्या बन के बड़े बने, क्या बने, लाइफ में खुश कितने थे, फाइनेंशियली कैसे थे. तो इतना स्ट्राइकिंगली डिफरेंस पता चला कि पीपल हु शोड डिलेड ग्रेटिफिकेशन, मतलब who had the willpower or who had the thought process to delay their gratification, delay their gratitude and not went for immediate gratification. समझ आ रहा है, मतलब immediate खाने के एक की greediness नहीं दिखाई और हमने उसको delay किया. So all those 30 people in life who had delayed gratification, they were better successful in life, they were more calmer people, they were financially stable people, they reached better heights in life. So they were overall, they achieved much greater success than, so this is what you have to learn in life. And again, water is one of those beautiful ways which you can calm yourself down. So now my journey with Blue Mind, how did I connect to Blue Mind? So this is me doing laparoscopy surgery, and as a surgeon I used to open up bodies to heal every single day. And as I was telling, retrospectively being a cancer surgeon और gut specialist, यानी कि पेट के बीमारी के रिलेटेड मैं बहुत सारे लोगों को ट्रीटमेंट करता हूँ. पाइल्स जो कि बहुत कॉमन बीमारी है, जो कि पानी कम पीने की वजह से होती है, उससे रिलेटेड ट्रीट करता हूँ. और उसके अलावा पानी, अगर आप मैंने 10 साल पिछले पेशेंट्स को क्या एडवाइस दिए, ये ब्लू माइंड ये सब तो मैंने अभी 2 साल में पढ़ा है, 1-2 साल में पढ़ा है. लेकिन उसके पहले अगर रेट्रोस्पेक्टिव पीछे जाके मैं देखूँ तो मैंने एक एडवाइस जो अपने हर पेशेंट को दी है पिछले 10 सालों से, वो है कि पानी ज़्यादा पीना है, पानी अच्छे से पीना है, पानी का मतलब सोर्स साफ़ सुथरा होना चाहिए. क्यों? क्योंकि ये चीज़ सब चीज़ मेक सेंस इन माई लाइफ, एंड वी शुड ड्रिंक मोर वाटर, थिंक लाइक वाटर. एंड देन आई केम अबाउट दिस बुक कॉल्ड वॉलेस निकोलस, ये जो ब्लू माइंड. And when I read this, I felt like this book is being written for me. And there was many things which I thought कि ये मैंने ही लिखी है किताब. पढ़ते वक्त मेरे को लग रहा था कि ये तो मेरी thought process चल रही है. So this is how I connected to this book. Then I started doing lot of things connected to water. I was swimming in water. जो ये left side में tub में मैं बैठा हूँ, वो tub नहीं है, वो एक आइसक्रीम चेस्ट फ्रीज़र है. And उसके अंदर मैं आइस जमा के I sit almost every day. So this is what is called as ice bath. मतलब ice bath has potential lot of health benefits. It gives a shock to your body. It makes your body stronger, and it is scientifically proven to increase your immunity, increase your endurance, increase a lot of strength. एंड ये मेरे साथ ऑटोमेटिकली होने लगा आइस बाथ के और सिचुएशन के वजह से. और आइस बाथ में और भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं जो कि आप इफ़ यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल अंडरस्टैंड. सो आई हैव स्टार्टेड दिस ब्लू माइंड अवेयरनेस. लास्ट वीक आई वेंट टू IIT कानपुर, एंड IIT कानपुर के भी बच्चों को मैंने यही सारी ब्लू माइंड रिलेटेड चीज़ें बताई, एंड दे वर वेरी इंटरेस्टेड एंड आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. बिकॉज इट्स ये हम जो भी हेल्थ रिलेटेड सारी चीज़ें हमको पूर्वज या हमारे पेरेंट्स बताते हैं, ये थोड़ा यंग और ये साइंटिफिक वे है सेम चीज़ों का. एवरीथिंग इज कनेक्टिंग एक्चुअली सेम. देन सिंस आई एम अ स्कूबा डाइवर ऑल्सो विच यू हैव रेड हियर. स्कूबा डाइविंग क्या होता है? पानी के अंदर जाके एक टैंक लेके गो इनसाइड द वाटर एंड वी एक्सप्लोर द मरीन लाइफ. सो लाइक इन द फर्स्ट फोटो बंद हो गया. हाँ, so like in the first right photo you see I have a small scuba tank in Allahabad, and I meditate 20 minutes underwater with this tank. 20 minutes underwater जाके I meditate. So that gives a beautiful feeling. Then I did an underwater Surya Namaskar also in the last photo which you can see. So all these videos, I have 2 Instagram channels which I would request each and everybody to follow, because आप ऐसी सारी चीज़ों के बारे में जान सकते हो. और उसमें से एक जो चैनल है डॉक्टर अर्पित बंसल .surgeon नाम है उस चैनल का. यहाँ दोनों QR कोड लगे हुए हैं. तो उसमें मैं हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस एडवाइस देता हूँ. 1-1 मिनट की हेल्थ रिलेटेड रील्स देता हूँ, बनाता हूँ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल. लाइक कितना पानी पीना चाहिए, घर पे आप पाइल्स या ऐसी कोई बीमारी घर पे कैसे बचा सकते हो, अगर पाइल्स हो गया है तो क्या खाना है. उसके अलावा और लाइफ में डेंगू का सीज़न जब आता है तो डेंगू से कैसे बचना है, अलग अलग चीज़ें टू क्रिएट अवेयरनेस. बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट हमारी लाइफ में लैगिंग है अवेयरनेस. करेक्ट. और एक और चीज़ हमने सेलिब्रेट की थी बीच वाली फोटो में, वर्ल्ड ओशन डे हमने इलाहाबाद में सेलिब्रेट किया था. तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस आप जोड़ के जान सकते हो. एंड नाउ वन मोर थिंग, लाइफ में सब लोग बोलते हैं ना कि फ्लो स्टेट अचीव करना है. फ्लो स्टेट पता है किसी को? फ्लो स्टेट क्या होती है? When you are like water, you automatically are flowing with life.
वी ऑल वुड लाइक कि हमारी लाइफ अच्छे से फ्लो करते रहे, अच्छी चलती रहे लाइफ, है ना. तो फ्लो स्टेट है जो आपने 90% सब ने किसी ना किसी टाइम में एक्सपीरियंस की होगी. सो हाउ डू यू एक्सपीरियंस फ्लो इन लाइफ, फ्लो स्टेट, ये भी ब्लू माइंड में लिखा है. एंड उसका क्या मतलब होता है, तो देर आर 4 phases where you have to, how you can achieve flow state in life, which is number 1, you have to do something which you love. For example, for me it can be swimming, for me it can be running, for me it can be doing laparoscopy surgery, for you it can be anything. So number 1 thing, you have to do something which you love. Number 2, you have to have mastered the skill in the past. मतलब पीछे you have to master the skill कि वो आप सबकॉन्शियस लेवल पे कर सकते हो. जैसे फॉर एग्जांपल ड्राइविंग आप सोच के तो ब्रेक नहीं दबाते हो जब ड्राइविंग सीख जाते हैं, तो है ना, तो वो ऑटोमेटिक हो जाता है. सो नंबर 2, यू हैव टू मास्टर द स्किल सो दैट वो आपकी एक्टिविटी ऑटोमेटिक हो रही है. फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्फिंग कर रहा है, पानी के अंदर सर्फिंग कर रहा है, तो वो ऑटोमेटिक होता है उसके बाद. आफ्टर सीखने के बाद आप पियानो बजा रहा है, कोई म्यूजिशियन है तो पियानो बजा रहा है, तो उसको हर की सोच के नहीं दबानी पड़ रही है. तो नंबर 1, यू हैव टू डू समथिंग यू लव. इट कैन बी प्लेइंग अ पियानो. Number 2, it has to be a skill which you have mastered the skill in the past. And number 3, there has to be a challenge. For example, a piano player के लिए हो सकता है यहाँ पे perform करना. For example, as a runner मेरे लिए हो सकता है आज सुबह मेरे को नींद आ रही है या थकान हो रही है और मेरे को 10 किलोमीटर भागना is a challenge for me. So जब आप when you are doing something you love and you have the skill which you have mastered in the past to perform it optimally, and you have a challenge in life, challenge in that field, then you achieve the 4th and the most beautiful state of flow, that is loss of sense of passage of time. फिर आपको टाइम का भी पता नहीं चलता है, टाइम कहाँ उड़ जाता है, टाइम कहाँ गायब हो जाता है, पता नहीं चलता है. तो दिस इज हाउ यू अचीव फ्लो इन लाइफ. बाकी सारी चीज़ें वी हैव डिस्कस. तो ये जो भी मैंने ब्लू माइंड रिलेटेड बोला, ये आयुर्वेदा भी ये सारे कंसेप्ट सिमिलर डिसेंड करता है. इवन हाइड्रेशन के तरीके मैंने आइस बाथ्स के बारे में ऑलरेडी बोला ही है आपको. विम हॉफ करके है जो कि ही इज़ अ आइस मैन ऑफ द वर्ल्ड. ही इज़ वेरी, मतलब ही plunges in cold water, -10 water, and he has built endurance. So he is my motivation behind the ice baths which I am doing regularly and which are proving very, very beneficial for my health. So last अभी टिप ऑफ द डे अभी बचा है, अभी थोड़ी एक एक्स्ट्रा चीज़ भी बची हुई है. तो मैंने आपको बताया, ड्रिंक बिफोर यू थर्स्ट, ड्रिंक पानी बिफोर यू आर थर्स्टी, नॉट व्हेन यू आर थर्स्टी. डोंट लेट थर्स्ट सिग्नल कम टू यू एंड वॉच ऑलवेज योर यूरिन कलर. नाउ एक थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि मैं अपनी बॉटल क्यों लेके घूमता हूँ. बिकॉज अभी पानी, एक तो बहुत बात हो गई ब्लू माइंड, पानी से कनेक्ट करना. नाउ देयर इज़ अ फेज ऑफ वाटर जो कि हमको बुक्स में अभी तक नहीं पढ़ा जाता है. ये क्या होता है? 4th फेज ऑफ वाटर. पानी कितने फेजेस में एग्जिस्ट करता है आप बताओ बेटा? सॉलिड में आइस, ठीक है, लिक्विड में पानी वाटर, एंड वेपर में वाटर वेपर, है ना. सो गैसियस फॉर्म, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. बट साइंस ने एक फाइंड आउट किया है कि देयर इज अ 4th फेज ऑफ वाटर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रक्चर्ड वाटर. एंड ये हमारे प्लांट्स और एनिमल सेल्स में ये नेचुरली होता है. मतलब सेल के अंदर जो पानी होता है, अगर आप लैब में सेल को काटोगे तो पानी फ्लो नहीं करेगा, ना वो हार्ड होगा. It is a phase of water called as hexagonal gel-like consistency or plasma. और तो this is the 4th phase of water and it is known to have lot of scientific benefits. And पानी का structure change होता है when there is so many radiations. Like ये device है, ये device है, ये device है. There are so many devices are emitting lots of radiations. So water is a absorber of radiations and its structure changes. Spiritually तो आपने सुना होगा शायद कि पानी से आप बात कर सकते हो, पानी के सामने चांट्स कर सकते हो. वो सब स्पिरिचुअल कंसेप्ट्स है. मैं उसमें बिलीव करता हूँ, बट आई एम नॉट राइट नाउ, आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली साइंस. सो साइंस से स्ट्रक्चर ऑफ वाटर चेंज हो जाता है एंड देर सो इट नेचुरली हैपन्स. जैसे गंगा का जो ग्लेशियर का पानी है वो स्ट्रक्चर्ड होता है. सो स्ट्रक्चर में ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल ऑफ द वाटर इज कोहेरेंट, एंड इफ यू समहाउ कंज्यूम दैट, देन दैट इज द बेस्ट हेल्दी फॉर्म ऑफ वाटर. आई not go into this details. So now coming to my daily routine, just to motivate all of you कि what I do every day. I wake up at around 4:30, 4:45.
I meditate for 20 minutes, then I go for a run. After my run, I come and have an ice bath. Then I do my workout. Then I swim or go for my underwater meditation, and then I eat, work, sleep, and then dream, etc. So this is ideally all the 4 pillars of health which I told. That is nutrition, hydration, then exercise, sleep, and meditation or blue mind or NSDR. So we are all drawn to water because it is our ancestral home. All of life comes to water, and we are deeply connected in each and every cell of our. So if for example our car runs out of petrol, we take care and put the premium quality of petrol, right? But अगर हम पानी की कमी हो जाती है, as I told, हमको सबको chronically पानी की कमी हो रही है, उतना हम ध्यान नहीं दे रहे हैं अभी भी. तो water has the potential to be magical, and so we have to keep drinking water and be passionate about life. Now, my second part of the talk is the little bit about birds and bird photography and how to connect with nature. So this is my photo. This is a toucan which I clicked in Costa Rica. एक minute. So bird photography या photography पे सबसे पहले I started bird watching. I'll tell my journey. When I was doing my MS in surgery in Nagpur, I was always a nature person, and 1 घंटे सुबह I used to always like to spend time in nature, and I used to like college days में तो सबको पता है थोड़ी बहुत लोग parties करते हैं, रात को late जगते हैं, but I was a person कि अगर रात को party करता भी था मैं, तो भी I had a habit of getting up at sunrise, because वो morning में आप जो nature का आप enjoy कर सकते हो वो आप कहीं किसी और समय नहीं कर सकते. Morning and sunset and sunrise, when you see that morning sunrise, वो आपका body का circadian rhythm, body का एक internal clock होता है, वो automatically set हो जाता है. So that was my thing, and then so during my MS days I got introduced to birds, bird watching, and I started this journey of bird photography. So उस समय birds, this I'm talking about 2010, that was almost 14 years back. So उस समय this hobby was very new. So I started photographing birds around Nagpur. I did my MS, like masters from Nagpur. So during those time, 1 hour every day in the morning before going to my hospital, to my work, I used to roam around in nature, and there I got introduced to this passion. And before that also, I was always a nature lover, and I used to always connect with nature. And so I started my bird watching journey there, and then I started clicking different species of birds. So for example, India is a very rich, biodiverse country. And जैसे आपने सुना होगा, I'm a TEDx speaker also, so I gave a TEDx talk on how to conserve our biodiversity and how हमारे nature का सारा imbalance हमारे humans ने ही create किया है. Forest को encroach कर रहे हैं हम, पहाड़ जला दे रहे हैं, पहाड़ तोड़ दे रहे हैं. So we are all destroying the ecosystem, and इसके वजह से ही all the problems are happening. So I was always a nature lover, and once I started clicking birds, तो इंडिया में there are 1300 different species of birds, different प्रकार के birds अलग अलग. मतलब जैसे किंगफिशर एक प्रकार हो गया, क्रो एक प्रकार हो गया, तो उसमें अलग अलग. और किंगफिशर में इंडिया में फॉर एग्जांपल 12 different types of kingfishers are there. In Allahabad we see only 3 kingfishers, different types, but in overall kingfishers are a different species. So that's what I am telling you. So now इंडिया में 1300 species में से मैंने 1145 मतलब almost 1150 species फोटोग्राफ कर चुकी हैं, मेकिंग मी द नंबर 7th इन द कंट्री. मतलब इतनी स्पीशीज और किसी ने नहीं देखी है. सो when I started on this journey, I kept on. Now everybody in the bird photography field in India knows me, but until recently, so I was always a nature person, and nature हमारे को automatically color green से connect करता है ना. nature मतलब green color होता है, तो कोई confusion नहीं है. लेकिन जब मैं अभी recently blue mind और ocean, so when now my bird journey was very at the pinnacle, then I got introduced to scuba diving or underwater, because underwater भी वही fishes है, वहाँ पे भी different species of fishes है, तो वो मज़ा ही अलग है underwater का. So when I got into the ocean,
under life, then it opened such a wide perspective to life, because it showed me कि सिर्फ लैंड पे या एयर में सिर्फ बर्ड्स ही नहीं है नेचर में, ओशन लाइफ इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नेचर. एंड वेरी इंटरेस्टिंगली वी ऑल कनेक्ट द कलर ग्रीन टू नेचर, करेक्ट, वी आर टॉकिंग. बट हम जब प्लैनेट की बात करते हैं तो हम नहीं बोलते कि हमारा प्लैनेट ग्रीन प्लैनेट है. वी ऑलवेज से द प्लैनेट इज अ ब्लू प्लैनेट, राइट. जब हमने अपोलो के मिशन किया था 1980 में इंडिया स्पेस में, तो स्पेस से जब उन्होंने द अपोलो सॉ आवर प्लैनेट अर्थ, it was called as the blue marble because it was looking a small speck of blue from the space. That is what it is. So that is how my connection to water and nature and blue and green got merged. So now coming back to the green part of it, blue wala talk to ho gaya already. So photography again is a perspective. जैसे बच्चों ने भी बोला था कि you all learn different perspective. सो एवरी वन हैज़ अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव. जैसे ये बॉटल रखी हुई है या ये बाहर इतने अच्छे पेड़ हैं, तो हर चीज़ का पर्सपेक्टिव सब में अलग होता है. एंड एवरीबडी हैज़ दिस टैलेंट और आर्ट ऑफ फोटोग्राफी. सो वी ऑल हैव टू ईच ऑफ अस होल्ड दिस फोटोग्राफी स्किल. इट्स द मैटर ऑफ अनलॉकिंग पेशेंस, अवेयरनेस एंड विजन टू लेट द मैजिक अनफोल्ड. सो ये मेरी जर्नी शुरू हुई, मैं आई विल कीप ऑन स्पीकिंग एंड कीप ऑन शोइंग यू फ्यू फोटोज़. So every year, for the last 4 years, I've been making a calendar on birds, just to make again people aware about what species of birds are there, and making more people connect to nature. So ये calendar मेरा last year का है, इस साल का भी इस presentation में नहीं है. So this is what happens is I used to send up to 1,000 copies of this calendar all across the country to different parts of the country and even out of country also. So many of my friends in Andaman have received it. Many of my friends in Assam, Arunachal, Ladakh, Gujarat, everywhere, all states of the India are covered. So when I send these beautiful table calendars, then they understand. मतलब उनके बच्चे घर पे देखते हैं. People at their home see their calendars, and I have got so many calls, even in our Rotary group in Allahabad. Or many people have started to understand birds and बर्ड्स की फ़ोटोज़ देखते हैं या बर्ड्स को किंगफिशर देखते हैं, तो दे आर सडनली वो अवेयरनेस का पर्सपेक्टिव खुल जाता है. सो दैट इज़ वाई दिस इज़ माई अगेन वन न्यू जर्नी विच आई हैव स्टार्टेड की टू सेंड कैलेंडर्स एवरी ईयर. सो दिस इज़ अ ब्यूटिफुल बर्ड कॉल्ड ग्रैंडाला विच आई क्लिक्ड इन द at Sela Pass, which is in Arunachal. So it was, as you can see, there is snow is falling, so it was very harsh conditions. Photography, bird watching specifically teaches a lot of patience, because ये फ़ोटो फ्रेम के आप प्लान नहीं कर सकते, बर्ड उड़ सकती है, वेदर कंडीशंस, लाइट कंडीशंस. सो दिस इज़ अगेन अ वुडपेकर, अ हिमालयन वुडपेकर क्लिक्ड इन श्रीनगर. अगेन दिस इज़ वन ऑफ द रेयरेस्ट रेयरेस्ट सनबर्ड ऑफ इंडिया, दैट इज़ कॉल्ड द वैन हैसेल्ट्स और द पर्पल थ्रोटेड सनबर्ड. अगेन द पर्पल on its color on its throat you can all see. So there are different feathers and the light has to fall perfectly on all these feathers to look purple. Otherwise at different angles it will look half black, half purple. So all this is the snow partridge. So this was my 1,000th bird. That is why this year's calendar was called as 1,000 tails, because this was my 1,000th bird. And on that day also, if I tell you a story of that day, I was at Sela Pass. From that Grandala picture, Grandala bird was the 999th bird and this was the 1,000th bird. So we all went so my profession is such that I cannot take longer holidays because there are lots of patients also. So I usually take 3-4 days holidays and go to the remotest locations in the world in India and go and click birds. So when I reached the Sela Pass, which is a high mountain pass, ठंड का मौसम था. So there were 2 of my friends were there and it was very very harsh conditions. Harsh means snowfall हो रहा था and lot of wind was there. It was very cold. So we all it was not right conditions for bird watching. So we all were sitting in the car and we were drinking tea. चाय पी रहे थे हम. बाकी दोस्त बोल रहे थे कि यार शिट यार आज का सेशन तो ख़राब हो गया, अब कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि इतनी हवा चल रही है. तो मैंने बोला यार मैं इतना काम छोड़ के अपना मैं यहाँ गाड़ी में चाय पीने के लिए तो नहीं आया हूँ. So I told them that I am going. अब कुछ नहीं भी मिलेगा तो I'll roam around and go and see what I get. And then I happened to get 2 of these photos which you have just seen, which were my 999th and 1,000th bird. So this story teaches you कि हमको लगता है लग क्या रहा था, मौसम ख़राब था, actually मौसम ख़राब था. और मैंने when I left outside the car,
सो मैंने कोई जादू नहीं कर दिया, मैंने कोई मौसम नहीं चेंज कर दिया. सो स्नो वॉज फॉलिंग. देन after walking for a kilometer, I saw these flock of this big bird, blue bird, which I showed you in the earlier. This, and there were around 10-15 of them, and snow was falling. So and they settled at this rocky place. So I then observed these birds from far. Then almost for around 500 meters, then I crawled in the snow, and then I could finally get this picture. So now, after hearing the story behind the picture, you can connect to this picture much better, right? I'm sure. And same is with this bird. So this bird is a rare bird which you see in the mountains. This is called a snow partridge. And again, ये bird भी मिल नहीं रही थी. फिर हमने we were looking at the edges of the mountains. It was very bad weather. The same day, same morning की birds है दोनों. So then finally we saw this bird and we patiently waited. दूर से फोटोज मिली. देन आई पेशेंटली वेटेड अराउंड अ रॉक, एंड इत्तेफाक से वो 4 बर्ड की फैमिली थी, एंड दे वॉक्ड राइट इनटू मी. मतलब दिस बर्ड में मेरे को आई हैड टू वॉक 5 फुट्स बिहाइंड टू गेट दिस फ्रेम, बिकॉज माई कैमरा कुड नॉट फोकस. दे हैड कम सो क्लोज. वाई? बिकॉज आई वॉज सिटिंग पेशेंटली एंड क्वाइटली, एंड ऑलमोस्ट 1 घंटा वेट किया होगा शायद हमने, तो तब ये फोटो मिली. So that's what again nature teaches, and ultimately with these stories I can inspire. If I can inspire even 1% of people who are seeing these photos, listening to these stories, then I have done my part and my bit to nature. This is again very very rare bird. I have to go. We have to go in monsoon in the hills to click it. Called a Neel Tawa. This bird is called a Neel Tawa. This is a scarlet finch. Again a very very interesting bird. This bird, if I tell you the story again, जो शाहरुख खान की मूवी में आपने सुना होगा वो डायलॉग कि अगर किसी चीज़ को आप शिद्दत से चाहने की कोशिश कर लोगे तो वो आपको मिल जाती है. ये सुना है ना डायलॉग सबने? तो क्या डायलॉग है? मैं भूल गया, बता दो प्लीज़. क्या डायलॉग है मैम? आप ही बता दीजिए, मेरे को याद नहीं आ रहा डायलॉग. समझ तो गए कौन सा डायलॉग की बात कर रहा हूँ. तो दिस वॉज वन सर्च बर्ड. दिस बर्ड इज कॉल्ड रेड नेक फेलरो. And this bird I have been, many times I have traveled to Gujarat, to Rajasthan, and this is a passage migrant. So this bird comes to in India for a month, आती है Western Ghats, मतलब पुणे और गुजरात और राजस्थान में थोड़े दिन रहती है और फिर चली जाती है. So this was the bird, and I had in the last 10 years or so, I had tried for this bird specifically कि मैं वहाँ जाके जहाँ यहाँ दिखती है वहाँ मैंने 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन मेरे को कभी नहीं मिली. और इलाहाबाद में मेरे पास टाइम भी नहीं रहता है. मैं एम बिजी इन माई वर्क एंड प्रोफेशन. सो वन फाइन डे लास्ट ईयर मे, वन ऑफ माई फ्रेंड्स आई कॉल्ड कि चलो बहुत दिन से बर्ड वॉचिंग नहीं की है, तो झूसी के पास छतना, ये HRI कॉलेज है ना, HRI कॉलेज, वहाँ पे एक पानी का घाट है कॉल्ड छतनाग घाट है ना. तो वहाँ पे आई डिसाइडेड कि लेट्स गो. देयर आर सम बर्ड्स जो वाटर बर्ड्स है, अच्छे कलर्स हैं, तो लेट्स गो एंड क्लिक देम. सो व्हाट हैपेंस विद बर्ड्स इज, स्पेशली जो विंटर्स में बाहर की बर्ड्स आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती है, एंड देयर आर सम रेजिडेंट बर्ड विच इंडिया में ही रहती है. तो वो जो मानसून के सीजन में वो ब्रीडिंग कलर्स ले लेते हैं. जैसे ये बर्ड है तो उसका रेड नेक दिख रहा है आप लोगों को, है ना. तो बट अगर आप विंटर में यही बर्ड देखोगे तो उसमें रेड कलर होता ही नहीं है, सिर्फ ब्लैक एंड ग्रे बर्ड होती है, वाइट एंड ग्रे बर्ड होती है. So during the monsoon season, May, June, July, you get the breeding colors. So there was some other common birds which had attained some breeding colors. So for that only we just decided to go and click it. We went, and ऐसा नहीं कि हम 3 दिन हमने try किया. Just one fine day randomly I decided कि आज जाके bird watching करेंगे. And मैं वहाँ गया, मेरी एक friend थी श्रुति, उसके साथ में me and Shruti were there. So we were just bird watching, and suddenly ये bird दिखी, मैंने खींची. I was not accepting or realizing the fact, क्योंकि इसके पहले ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं दिखी थी कभी आज तक. This was the first record of उत्तर प्रदेश, and it was only seen till Delhi. उसके अलावा वो वेस्ट में ही रहती थी, मतलब जैसे मैंने बताया गुजरात, राजस्थान, कभी कभी पुणे वगैरह में दिखती थी, बट ईस्ट में नहीं आती थी क्योंकि माइग्रेटरी पैटर्न उस बर्ड का ऐसा था. Now after I got this bird, I entered on the website eBird, and it has now proving to science also that इसका migratory route में इलाहाबाद, यूपी भी आता है. So when I was clicking it, I was not believing what I was clicking. I just kept on clicking, and even after having extensive knowledge of all the birds,
I had to pinch myself 10 times to know that I am not dreaming. This is real. This is happening for real. This is what, मतलब जो bird मैंने जगह जगह जाके ढूंढी वो मेरे इलाहाबाद में आके मेरे को मिल गई. मतलब this is a really मतलब amazing for story for me also. So these are all other different birds. Now we can open to be questions. अगर किसी को कुछ questions पूछने हैं related. And one more thing before we go down to questions, I want to tell. So these are some birds from Costa Rica. I went to Costa Rica in 2023 January, and different birds, parrots, toucans. See this is such a nice frame. ऐसा लग रहा है कि दोनों झगड़ के उल्टा बैठे, पर they were just playing. And to get this frame, I had anticipated this frame because they were again 2, 3, there were 4 of these birds called collared aracari, and they were playing with themselves. But ऐसे ये frame right moment पे मिल जाएगा वो तो कोई नहीं predict कर सकता. So what bird photography and nature has taught me has given a lot of upskill or potential in my profession. So my profession is laparoscopy surgery. Again related to camera, I stare at the camera screen for 4 hours, 3 hours during surgery. And so this bird photography and laparoscopy surgery is 2-3 चीज़ों में एकदम common है. एकदम common किस चीज़ में है? एक तो patience. Number 1 is patience. Both laparoscopy surgery is required and the bird photography require extreme amount of patience. And then focus. Because for the bird also I have to be always ready to press the shutter at the right moment, and the same is for the surgery. Surgery I cannot do any mistake. It is human lives which I am dealing with. So these 2 things and perseverance, you have to keep doing it to become a master at it. And same is with the blue mind or the ocean. So I am now exploring one more realm. So I always believe that there are 3 realms like land, water and air. Everybody knows, है ना? 3 realms where life exists. Land. So land के तो humans master है. We humans are masters of land. We rule the land. हम घर बना सकते हैं, हम plane बना सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं. But very few humans are ruling the air realm. So air realm, I am connected to the air realm through birds. Birds are basically air realm. And water realm again. Water realm, I am a scuba diver, I am doing underwater meditation. So I think to live a fulfilled life and to live a happy life, you have to experience life in all the 3 realms, which is the land realm, the air realm and the water realm. And so here, the blue mind has brought a brilliant amount of balance into my life, into my profession and into my life in general and into my health obviously. Because sleep and meditation or the blue mind was one important pillar of health, which I was, even being healthy, so I was always healthy. I was never unhealthy. मतलब बीच में there were phases. So nutrition, जब भी कोई healthy जीने की चाह रखता है या शुरू में हमने बात किया था लंबा जीना चाहता है, तो नंबर 1 चीज़ सब लोग जो सोचते हैं गाँव में घर पे कि अच्छा खाना खाना है, ठीक है, हेल्दी खाना खाना है, वो सब लोग सोचते हैं. उसमें पानी वाला पर्सपेक्टिव बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, जो मैंने आज काफ़ी बताया है इंपॉर्टेंस में. नंबर 2 मूवमेंट. आप बच्चों के लिए अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि आपकी लाइफ में वो नेचुरली है. आप इतना बड़ा कैंपस है, आप आते हो, चल के आते हो. सो मूवमेंट इज़ वन इंपॉर्टेंट विच यू शुड कीप इन माइंड एंड ट्राई टू इन्वॉल्व योरसेल्फ इन स्पोर्ट्स और एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी. नंबर 3 इज स्लीप. स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पेशली आप लोगों के लिए एग्जाम डेज पे, जब एग्जाम होते हैं या कोई अगले दिन इंपॉर्टेंट दिन है, तो उस दिन ज़रूर 7 से 8 घंटे की नींद ज़रूर करके जाना है. एंड चौथा मेडिटेशन या ब्लू माइंड या NSDR जो भी आप कर सके. सो मैम आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. और अगर किसी को और कुछ पूछना है तो दे आर मोस्ट वेलकम नाउ, बिकॉज देर आर आई कवर्ड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ टॉपिक्स इन आई थिंक 1 hour और सो. So life में हाँ बोलिए. I feel the children are exhausted. I think you need water, calmness, and sir is in blue color. Which with the blue bottle, which will give you calm. So आप लोग titles देना शुरू करें Dr. Arpit को. So I think I'll fall short of it. He's a doctor. He's a photographer. He's a speaker. He's an influencer.
कितने लोग इन्फ्लुएंस हुए? Lovely. What a response. अब हम लोग बताएंगे how. अब इन्फ्लुएंस तो हो गए, अब बनना कैसे? How to get close to the dream which we have built today. और dream बोले ना, we have to daydream, that middle portion of your brain, which we have to go there. That is the secret weapon which makes us intelligent. जो हमारी जरूरत पे prop up कर जाता है. So I really want you to all ask lot of questions. Take a deep breath, ask lot of questions so that we can be close to our dreams. How? I think बोलने की जरूरत नहीं है. जब हम एक जन को देख सकते हैं, who's a surgeon, photographer, speaker, influencer, and how? Just mention land, water, and air. You know? So come on. Now the mic I will give it to two teachers. तो आपको पास लेके जाएंगे, you can ask questions. Anything, be free because see, I am here to motivate you, all of you, and in the meanwhile I'll show वो जो पुरानी birds थी, those were from different parts of the country and in India के बाहर. Here are 15-20 birds which are from birds of Prayagraj, which you can keep seeing while you are thinking of some questions. This is a Indian white eye जो आपके कैंपस में 100% होगी. आपको अपनी नज़र देखनी है. ये सॉरी ये स्लाइड शो है. सो ये दिस इज द इंडियन वाइट आई. देन दिस इज द वर्डेटर फ्लाई कैचर, अगेन कंपनी गार्डन में खींची हुई इतनी सुंदर बर्ड. सनबर्ड, ऑरेंज हेडेड थ्रश. हाँ यस हाँ आप वहाँ पे लिखा था कि आप एमबीबीएस करते समय एक मतलब बुरी संगत में आ गए थे. हाँ तो आप उसको कैसे समझा और हम अपने आप को कैसे देखिए, बुरी संगत तो ऐसी चीज़ होती है कि देखो लाइफ में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना. और मैं इसमें एक आंसर करना चाहूँगा. एक मैरी क्यूरी करके एक देयर इज अ लेडी है ना, विच कोट्स ब्यूटीफुल वन थिंग दैट लाइफ में सबको पता होता है कि बहुत सारे लोग डेस्टिनी में बिलीव करते हैं, है ना. डेस्टिनी में बिलीव करते हैं यानी कि हमारी किस्मत में लिखा हुआ है कि हमको डॉक्टर बनना है या जो भी एट्सेट्रा, ठीक है. और दूसरी चीज़ हमको डिटरमिन करता है हमारा इंटेंशन क्या होता है. बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये किस्मत डेस्टिनी कुछ नहीं होती है. जो हम सोचोगे या जो तुम चाहोगे या जो तुम इंटेंशन रखोगे या जो तुम मेहनत करोगे वो तुम पालोगे, है ना. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, ठीक है. तो मैरी क्यूरी एक बंदी है, इज अ फेमस सम न्यूरो साइंटिस्ट आउटसाइड इंडिया. शी सेज दैट व्हाट यू अचीव इन लाइफ और वेयर यू रीच इन लाइफ डिपेंड्स ऑन 3 थिंग्स. जो आपने क्वेश्चन पूछा उससे रिलेटेड है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. नंबर 1/3 ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर इंटेंशंस. मतलब फॉर एग्जांपल मेरे को डॉक्टर बनना था तो मैंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की, मैंने इंटेंशन रखा, मैंने मेहनत की. नंबर 1/3 ऑफ आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन आवर डेस्टिनी. अगर मेरे को फॉर एग्जांपल डॉक्टर के साथ में मेरे को एस्ट्रोनॉट भी बनना था, सच्ची में बचपन में मेरे को बनना था, लेकिन वो मेरी डेस्टिनी में नहीं था, इसलिए मैं वो नहीं बन पाया. तो इंटेंशन इज 1/3 ऑफ योर लाइफ. 1/3 of your life governing thing is the destiny, and the rest 1/3 is the energy of spaces around you. ये बहुत ही डीप चीज़ उन्होंने बोली थी, the energy of spaces around you. मतलब आप किनके साथ रहते हो, आप किस एटमॉस्फेयर में रहते हो, आपके घर में कैसा माहौल है, आपके खान पान में कैसा माहौल है. तो बुरी संगति में तो देखो सब लोग आते हैं, है ना. आसपास कॉलेज डेज में अल्कोहल ये सब गलत आदतें संगतें बहुत रहती है. तो ऐसा कुछ नहीं है, बुरी संगति तो नहीं कहना चाहिए, बट मतलब देयर वाज अ टाइम वेयर आई यूज्ड टू ड्रिंक अल्कोहल इन ऑन एंड ऑफ. आई वाज नेवर एन अल्कोहलिक एज इन सेंस कि मैं बहुत अल्कोहल पीता था, पर पार्टीज में हफ्ते में 2 बार काइंड ऑफ पीता था कभी कभी अल्कोहल. सो दैट वाज वन ऑफ माई लोज इन लाइफ बिकॉज अल्कोहल आई हैव नाउ स्टॉप्ड अल्कोहल ऑल टुगेदर सिंस ऑलमोस्ट 2 years. एंड अब मैं पार्टीज में भी नहीं जाता हूँ. आई एम ऑलमोस्ट, विच इज़ ऑल्सो नॉट वेरी गुड बिकॉज एक्चुअली जो सोसाइटी के दोस्त हैं वो बुरा मान जाते हैं. लेकिन नाउ आई हैव स्टॉप्ड अल्कोहल ऑल टुगेदर बिकॉज व्हाट आई थिंक इज जो पिलर्स ऑफ हेल्थ है, अल्कोहल हमारे वो चारों पिलर ऑफ हेल्थ को स्पॉइल कर देता है. न्यूट्रिशन के लिए वो बैड है, डिहाइड्रेट करता है तो हाइड्रेशन के लिए भी बैड है, अगले दिन एक्सरसाइज पक्का नहीं कर सकते. नंबर 3rd और मोस्ट इंपॉर्टेंट, अल्कोहल पीने के बाद नींद भी स्पॉइल हो जाती है. और मेडिटेशन कैसे करोगे जब मेंटल स्टेट में सही नहीं रहोगे. तो अल्कोहल स्पॉइल्स ऑल द 4 pillars of health. So that is why when I'm telling you about the 4 pillars of health,
हाउ कैन अल्कोहल बी पार्ट ऑफ दिस, अल्कोहल और एनी अदर बैड थिंग्स. सो ऐसा कुछ नहीं है कोई ऐसी बुरी संगति, मतलब सी देर आर पीपल हु इन्फ्लुएंस यू टू डू बैड थिंग्स, बट यू हैव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू बी फोकस्ड इन योर लाइफ. And the best thing to focus on you is on yourself. The best project in your life should be yourself. If you can motivate yourself to be better versions of you every day, that is the best gift you can do. मतलब आप आज हो तो आप एक साल बाद अभी अपने आप से बेटर कैसे बनना चाहते हो, चाहे आप 11th 12th में स्कोर अच्छा ला के पढ़ना चाहते हो, चाहे आप कोई कॉलेज पढ़ के कोई कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हो, चाहे आप हेल्थ में अपने आप को बेटर करते रहना चाहते हो, चाहे आप फिटनेस में बेटर करना चाहते हो, चाहे आप खाने में अच्छा करना चाहते हो. और मैंने यहाँ तो आपको बताया कि एजिंग में जैसे आज इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि एजिंग इज़ अ डिजीज़, जो मैंने आपको बताया, सॉरी. सो अब एजिंग एक तो हमारी क्रोनोलॉजिकल एज होती है ना, क्रोनोलॉजिकल एज होती है, मतलब जैसे आज मैं 38 ईयर्स का हूँ बाय बर्थ. देन देर इज़ अ कार्डियोलॉजिकल और देर इज़ अ हेल्थ एज which you can find out by your fitness levels. So even I am at the age of 38, but my cardiovascular health is still around 30 years. So that is what we can decrease our goal with passing day. We cannot decrease our chronological या calendar वाली age तो हम कम नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी health वाली cardiovascular mental health कम ज़रूर कर सकते हैं. Thank you. बोलो बेटा. जैसे आपकी फैमिली की डॉक्टर से है, हाँ. तो आप डॉक्टर ही क्यों चूज किया? आपके पास तो फोटोग्राफर भी एक स्किल से फोटोग्राफर भी. वेरी गुड क्वेश्चन. सो सोसाइटी में यहाँ तक कि मेरे मम्मी पापा ने भी और अभी भी बहुत लोगों को यही लिमिटेशन है कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो डॉक्टर, इंजीनियर या लॉयर. अभी मेरी फ्रेंड रिशु भी आ रही है थोड़े दिन में, तो वो आपको लॉयर वाला पॉइंट बताएगी. बट मैं बताऊँ ये कंसिडर किया जाता था कि यही अच्छे प्रोफेशंस हैं. तो मेरे को डॉक्टर क्यों बनना था, ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, क्योंकि मेरे मम्मी पापा को मैंने देखा एज डॉक्टर्स दे यूज्ड टू सेव लाइव्स. लिटरली बचपन में सारे मतलब मम्मी पापा काफ़ी लोगों की जान बचाते थे. तो मेरे को हमेशा से आई हैड दिस नेचर टू हेल्प पीपल एंड उसलिए, और कैंसर में मेरे को लगता था कि लोग सबसे ज़्यादा डरते हैं, इसलिए मैंने वो फील्ड चूज़ की. तो मेरे को डॉक्टर तो बाय बर्थ बनना था, क्योंकि मैंने मम्मी पापा को, आई हैड सीन माई पेरेंट्स मतलब सेविंग पीपल्स लाइफ, सो आई ऑलवेज वांटेड टू हेल्प पीपल. एंड फोटोग्राफी तो मैंने भी खुद मेरा पर्सपेक्टिव जैसे जैसे किया वो एक्सप्लोर किया. एज आई वॉज टेलिंग यू, सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज ऑलवेज अ नेचर पर्सन, पर फोटोग्राफी में मैं मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं था. तो फोटोग्राफी मैंने कोई सीखी नहीं है. अगेन मैंने आई हैव नॉट डन एनी कोर्स ऑन फोटोग्राफी. फोटोग्राफी मेरे को नेचर से प्यार था एंड मेरे को बर्ड्स अच्छी लगने लगी, तो मैंने कैमरा छोटा पहले ख़रीदा, उसके बाद धीरे धीरे करके सीखा. तो यू आर वेरी राइट नाउ तो आप फोटोग्राफी में भी प्रोफेशन बना सकते हैं, सोशल मीडिया में प्रोफेशन बना सकते हैं. तो सोशल मीडिया में मैं आपसे ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि सब लोग, इंस्टाग्राम पे मेरे 2 चैनल है, एक डॉक्टर अर्पित बंसल नाम से और एक डॉक्टर अर्पित बंसल .सर्जन नाम से. और डॉक्टर अर्पित बंसल .सर्जन वाला में प्रोफेशन वाले बहुत इंटरेस्टिंग 1 मिनट रील्स है कि क्या आपको खाना चाहिए, आपके गट हेल्थ के लिए क्या बेटर होता है. और जो दूसरे वाला है उसमें मेरे नेचर टॉक्स और मोटिवेशन टॉक्स और बर्ड फोटोग्राफी पे है. ठीक है, थैंक यू. और कुछ पूछना बेटा? हाँ. जैसे हमारे नेचर से बर्ड्स गायब हो रही हैं, तो उनके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा क्या करें कि बर्ड्स गायब हो? अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी राइट क्वेश्चन बेटा. सो जैसे यहाँ पे आपने लिखा पढ़ा होगा टॉप 10 ई बर्डर्स ऑफ इंडिया, है ना. तो ebird.org करके एक वेबसाइट है जो कि सिर्फ इंडिया की नहीं है, वर्ल्ड की है. वो एक साइंटिफिक प्लेटफॉर्म है. तो हमको क्या करना चाहिए जो आपने पूछा उसके लिए हमको सबको थोड़ा बर्ड्स में इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, थोड़ा बर्ड वॉचर बनना चाहिए. और eBird पे अकाउंट खोल के eBird में थोड़ा बर्डिंग, उससे ये होगा, दोनों चीज़ें फ़ायदा होगा. हम बर्ड्स को बचाने में भी हेल्प करेंगे और हमारा खुद का हॉबी, खुद का पैशन बर्ड्स के प्रति जाग जाएगा. तो eBird में जैसे मैंने बताया अभी आपको, वो स्टोरी सुनाई जो एक बर्ड आई थी, है ना, जो इंडिया के कभी उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी थी. बट आई एम ई बर्डर. मैं अब जितनी भी बार मैं बर्डिंग करता हूँ, सिंपल ऐप है, जो भी आप बर्डिंग करो, क्या बर्ड्स दिखी क्या नहीं दिखी, यू कैन पुट इट ऑन द ऐप. तो उससे वो साइंटिफिक डेटा पता चलता है. तो जैसे फॉर एग्जांपल सबको लगता है ना कि स्पैरो खत्म हो गई है. क्या नाम है बेटा आपका? अनुराग.
सो आपको सबको पता है ना कि स्पैरोज खत्म हो गई हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं ना कि, है ना मैम, पूजा मैम ऐसा बोलते हैं, एवरीबडी स्पीक्स कि स्पैरोज खत्म हो गई हैं। बट ये ई-बर्ड के थ्रू हमने ये प्लेटफॉर्म में जो सर्च किया और पिछले 5 साल का डेटा देखा कि स्पैरोज कितनी हैं, तो स्पैरोज खत्म नहीं हुई है। स्पैरोज की पॉपुलेशन एक्चुअली राइजिंग ट्रेंड में है, लेकिन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन लोग स्पैरो में पैसा लगा रहे हैं, स्पैरो कंजर्वेशन में, है ना, जबकि स्पैरो का साइंटिफिकली नंबर्स तो बढ़ रहा है, तो स्पैरो कंजर्वेशन में पैसा लगाने का क्या फायदा है? इससे अच्छा वाटर बॉडीज में पैसा लगाए, जो वाटर बॉडीज डिस्ट्रॉय हो रही है, क्योंकि स्पैरोज खत्म नहीं हो रही है। लेकिन हाउस स्पैरो उसको क्यों कहते थे? क्योंकि वो जो पुराने घर थे, झोपड़पट्टी वाले घर होते थे, जिसमें घरों के बीच में सीमेंट की वॉल्स नहीं होती थी, उसमें स्ट्रॉज और ये सब, उसमें गड्ढे होते थे जहाँ वो घर बनाती थी। अभी हमने इतना दूर, यहाँ अच्छी अच्छी जगह पे भी सीमेंट के हॉल्स बन गए, तो वो रहेंगी कहाँ बेचारी? तो वो खत्म नहीं हुई है, वो सिर्फ गाँव की तरफ शिफ्ट हो गई है, जहाँ वो अभी भी वो झोपड़पट्टी वाले घर हैं या छोटे घर हैं, जहाँ उनके पास घर में जगह है बनाने के लिए, घर, अपने घर बनाने के लिए, वो वहाँ शिफ्ट हो गई है। वो पॉपुलेशन उनकी एकदम अच्छी चल रही है। स्पैरो कंजर्वेशन के लिए हमको कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, rather than, तो बाय गेटिंग कनेक्टेड टू दिस ई-बर्ड प्लेटफॉर्म or by doing birding, each of you young people can contribute to the scientific saving of the birds, because आपने सपोज आज यहाँ पे 5 स्पैरो देख ली, आपने 5 हाउस स्पैरो देखी, तो आप उसमें एंटर कर दोगे, आपने यहाँ 5 हाउस स्पैरो देखी, उसमें बहुत सारे फिल्टर्स भी हैं, जैसे मेरे जैसे लोग हैं जो कि चेक करेंगे कि सही में आपने देखी कि आप बुद्धू बना रहे हो, वो अलग चीज़ है, बट एटलीस्ट कंजर्वेशन में आप हेल्प कर सकते हो। यस बेटा। सर हम लोग जैसे स्टूडेंट हैं, तो आप भी स्टूडेंट थे, 10th-12th आपने पास किया, MBBS किया, तो उसके बीच में आपको डीमोटिवेशन हुआ होगा, कॉन्फिडेंस लॉस हुआ होगा, तो आपने उस चीज़ को मैनेज कैसे किया और आपका उस फेज में कौन साथ दिया था, एज अ फ्रेंड, एज अ रिलेटिव? वेरी गुड क्वेश्चन बेटा, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। सो मोटिवेशन हम कैसे बनाएं? देखिए, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ भी। एंड कौन साथ दिया था? तो ऑब्वियसली पेरेंट्स से सबसे इम्पॉर्टेंट कोई नहीं होता है, बिकॉज पेरेंट्स आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट करते हैं, और अगर आपका कोई सिबलिंग हो, तो भाई बहन हो, तो और जिसमें आप कॉन्फाइड कर सको, जिसको आप सारी बातें बताते हो। उसके अलावा आपको अपने ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स ऐसे बनाने चाहिए जो कि अच्छी बातें करें, मोटिवेशन की बातें करें। ये सारी तो देखो आइडियल सिचुएशन है, सबके लाइफ में ऐसा होता नहीं है कि अच्छा कोई फ्रेंड है जो मोटिवेट करे। और यू आर वेरी राइट, मैं भी डीमोटिवेट हुआ था, मैं एक बार नहीं कई बार डीमोटिवेट हुआ था। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमको अपनी बेस्ट कोशिश करनी है और पैशन से करनी है, और उसके बाद फिर हमको लेट गो करना आना चाहिए। उसके बाद जैसे फॉर एग्जांपल मैंने MBBS अपना किया बॉम्बे में DY पाटिल से, है ना। मेरे को KEM कॉलेज जाने का बहुत मन था, और मेरे को पहले दिल्ली में मौलाना आज़ाद जाने का बहुत मन था, लेकिन मैं उसमें नहीं जा पाया। तो मैंने मेरे लिए भी वो फेलियर था। लेकिन तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि लेकिन अभी मैं 10 साल बाद, 20 साल बाद मैं अपनी लाइफ, अगर मैंने शायद KEM से किया होता, अगर अपना कॉलेज KEM से किया होता, हेलो, सो बेटा आपका क्वेश्चन कंटिन्यू करते हुए 1 मिनट सेटल हो जाने दो सबको। हाय, आई विल ओनली इंट्रोड्यूस यू। शी इज़ माई फ्रेंड Rishu Mishra. She is a very senior advocate in High Court, and now after me she will be giving you a talk about what can motivate you to become a good lawyer in life, and it will be a very interesting talk. So जैसे आपने मेरे को इतना patiently सुना, so I urge कि आप इनको भी सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे आपको। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सो बेटा आपके क्वेश्चन पे कि डीमोटिवेट तो मैं भी हुआ था, यू आर वेरी राइट, है ना। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है हमको अपनी मेंटल हेल्थ पे फोकस करना और अपने आप को स्टेबल रखना, और ये अपने आप को बताना कि जो भी हम हारेंगे जीतेंगे उससे कुछ लाइफ नहीं बदलनी जाती। तो अपनी कोशिश पूरी करनी है हर चीज़ में, ऑब्वियसली अपना एफर्ट पूरा करना है, लेकिन फेलियर्स टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। Actually, some things, failures teach us even better than what success teaches us. So we have to fail. And
इट इज सेड दैट यू ओनली फेल इफ यू डोंट गेट अप. सो अगर आपने एग्जाम दिया, फॉर एग्जाम्पल आप फेल हो गए, तो अगर आप फेल तभी होगे जब आपने वापस एग्जाम दिया ही नहीं, तभी आप हारोगे लाइफ में. अगर आपने फेल हुए लेकिन आपने वापस एग्जाम दिया और उसके बाद आपने पास करके, आप लाइफ में, आपको पीछे कोई नहीं देखने वाला ये कि आपको क्या फर्क पड़ा. तो बिगेस्ट मोटिवेशन इज दैट लाइफ मूव्स ऑन and you have to keep your mental balance stable, and obviously your parents are your best friends, that's I believe. और किसी को कुछ पूछना है? Yes, बेटा. Sir, as you said about blue mind, मतलब सब किसी हर पर्सन की लाइफ में स्ट्रेस होता है. तो आपने कहा कि स्ट्रेस को मतलब ठीक नहीं किया जाता है ब्लू माइंड, जैसे कि वाटर वगैरह और एक्टिविटीज करके, एक्सरसाइज करके. तो हमारे साथ स्टूडेंट्स की लाइफ में तो इतना टाइम नहीं है कि हम लोग एक्सरसाइज करें. करेक्ट. ऐसा मतलब हम स्टूडेंट्स ग्रोइंग फेज में है, तो हम अपने आप को हेल्दी कैसे रखेंगे? मतलब कि बहुत ही इतना मतलब हमारे पास टाइम तो है नहीं स्टूडेंट लाइफ कि हम एक्सरसाइज करें और वगैरह. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा बेटा आपने, और एकदम एप्ट क्वेश्चन पूछा. और ये सेम क्वेश्चन मेरे को एक IIT कानपुर के स्टूडेंट ने भी पूछा था अभी, जब मैं एक हफ्ते पहले, ये सेम क्वेश्चन, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन था उसका भी. तो बैठ जाओ, आप बैठ सकते हो. तो एकदम सही क्वेश्चन पूछा कि स्ट्रेस तो खास करके स्टूडेंट लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा है. तो ब्लू माइंड, यही तो चीज़ है कि ब्लू माइंड ज़रूरी नहीं है कि आपको एक्सरसाइज करके करना है. ब्लू माइंड आप जो है अपना कामनेस ऑफ द माइंड, हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, नर्वस सिस्टम, आप बायोलॉजी स्टूडेंट हो तो थोड़ा थोड़ा नर्वस सिस्टम के बारे में पता होगा, है ना. एक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और एक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा स्ट्रेस गवर्न करता है, हमारे कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन्स और इमरजेंसी सिचुएशंस को डील करने में हेल्प करता है. और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे कामनेस, पीसफुलनेस, रिलैक्स एटमॉस्फेयर को हेल्प करता है. तो हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है वो हमारी हार्ट रेट नीचे लाता है, और हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट रेट ऊपर लाता है. तो आप एग्जाम देने जाते हो तो स्ट्रेस हो जाता है, तो हार्ट रेट ऊपर बढ़ जाता है, फिर आपको बोला जाता है आप डीप ब्रीदिंग करो, तो आपका हार्ट रेट कम हो जाता है ना. तो ब्लू माइंड और मेडिटेशन और नींद, स्लीप, सो फॉर स्टूडेंट्स यू आर वेरी राइट कि मैंने बोलते वक्त भी ये चीज़ बोली थी कि स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज का वाला पिलर आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि यू आर एनीवेज एक्टिव, हेल्दी, एज ऐसी है. ऑब्वियसली आप एकदम जंक नहीं खाना है, लेकिन और ऐसे कोई एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है. बट जो पिलर्स ऑफ हेल्थ में आप ध्यान रख सकते हो, वो एक तो सुबह इस समय पे उठो कि कम से कम ब्रेकफास्ट शांति से कर पाओ, भाग भाग के ब्रेकफास्ट, या जो भी सुबह पीते हो, दूध, ड्राई फ्रूट्स, वॉटेवर. दूसरी चीज़, हाइड्रेशन का तो ध्यान रख सकते हो एज स्टूडेंट्स, रख सकते हो ना. तो वो जो मैंने आपको बताया, स्पेशली गर्ल स्टूडेंट्स की पानी की बॉटल अपने पास रखनी है, और टॉयलेट होल्ड करके नहीं रखना है कि वॉशरूम नहीं है. तो फॉर स्टूडेंट्स आप एक नंबर, उससे आप सिर्फ उतने से आपको 90% डिफरेंस पता चल जाएगा अपने अंदर. कॉन्शियसली वाटर कंज्यूम करना है, हाइड्रेशन कंज्यूम करना है, यू विल नॉट फील, बीमार नहीं पड़ोगे, हेल्दी रहोगे इन जनरल लाइफ में. और माइंड की कॉग्निटिव परफॉर्मेंस मैंने आपको एक स्टडी भी कोट करके बताई थी, जिसमें अगर आप हाइड्रेशन लेवल मेंटेन करो तो आपका मेंटल कॉग्निटिव परफॉर्मेंस, एकेडमिक्स के स्कोर इंप्रूव हो जाएंगे. एक तो चीज़ वो, और दूसरी चीज़ टेंशन नहीं लेना है, उसके लिए नींद पूरी करनी ज़रूरी है. स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि मैं भी नहीं करता था, क्योंकि मैं भी बर्ड वॉचिंग और तमाम चीज़ों के वजह से, प्रोफेशन के वजह से, आई शू कीप रनिंग. सो स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड नंबर 1, सो न्यूट्रिशन ऑब्वियसली मोरल वाले आप ठीक ठाक कर ही रहे होगे, या अनहेल्दी नहीं खाना है, लेकिन न्यूट्रिशन का फर्स्ट पिलर का दूसरा पार्ट था हाइड्रेशन, जो कि आपको करना है, जो आप कर सकते हो एज स्टूडेंट्स भी. नंबर 2, एक्सरसाइज आप इग्नोर कर दो. नंबर 3, स्लीप आपको करना है, और स्पेशली एक्सरसाइज, और स्पेशली एग्जाम्स वाले दिन पे. और नंबर 4 इज़ द ब्लू माइंड और द मेडिटेशन और द, तो वो अगर आप इस एज से सीख सको या किसी भी फॉर्म में इनकॉर्पोरेट कर सको, 10 मिनट्स तो होंगे ना लाइफ में, दिन में 10 मिनट्स तो निकाल सकते हो ना. तो आप 10 मिनट्स यूट्यूब पे कोई मेडिटेशन लगा सकते हो, वाटर मेडिटेशन लगा सकते हो, आई कैन शेयर यू द लिंक, उससे ही सब कुछ सीन चेंज हो जाएगा. तो 10 मिनट्स तो आप अफोर्ड कर सकते हो. तो मैं आपके से दिन में 10 मिनट्स मांग रहा हूँ मेडिटेशन के लिए. और स्लीप कर सकते हो आप प्रॉपरली 6 to 7 hours, इफ नॉट 8 hours. एज स्टूडेंट्स वी कैन स्टिल स्लीप फॉर 6 to 7 hours. एंड आइडियल स्लीप टाइम एज पर बुक्स इज 8 hours, है ना. मैं भी नहीं कर रहा हूँ 8 hours, तो मैं आपको कैसे बोल सकता हूँ कि आप 8 hours हो.
आइडियल स्लीप एंड स्लीप में जो मैंने आपको डिफ़ॉल्ट ब्रेन नेटवर्क वाला स्टोरी मतलब कंसेप्ट बताया, तो वो स्लीप में भी हमारे वही पार्ट्स काफ़ी एक्टिवेट होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है मेमोरी और लर्निंग के लिए। जितना आपने पढ़ रहे हो, अगर आप अपने साथ करके देखो, आप एक हफ्ते अच्छे से पढ़ो 2 घंटे, और फिर उसके बाद रात को मस्ती करो, सो नहीं प्रॉपरली, और उसके बाद एक हफ्ते अच्छे से पढ़ो, 2 ही घंटे पढ़ो जो सेम, और उसके बाद टाइम से सो जाओ। आपका लर्निंग, आप 2 टेस्ट दे के देखो अपने आप को, एक सब्जेक्ट का एक टेस्ट 7 डेज आप कम सो के पढ़ा के देखो, और एक पढ़ के देखो, आपका 100% आपका खुद का परफॉर्मेंस बेटर होगा जिसमें आप ज़्यादा सो रहे हो, मतलब एप्टली सो रहे हो। तो फॉर स्टूडेंट्स आई थिंक 6 to 7 hours इज एप्ट टाइम फॉर स्लीप। Thank you, ma'am. Thank you, everybody. Thank you so much for so many questions. Thank you, Vincent sir. It was a pleasure to have you with us. Today I'm sure Laptop pack कर देना, मैं निकलूँगा। नहीं उठाया कि we are not influenced. I am sure they are Hello. the maximum they are going to take away today.